dermatologist from our country, our dear mentor, Dr. Bansi sir. Dr. Bansi sir will introduce to this webinar. Let me start by thanking Rutul and team and everyone who are active in DGenius. That's number one. This is a group of diabetologists who are young enough, but at the same time highly energetic, very enthusiastic, and very knowledgeable as far as scientific knowledge of diabetes is concerned. I'm not talking about their age, but they all are well experienced and very senior in terms of practice. I can say them they are senior diabetologists. Still, we call them a young diabetologist group, and they themselves also would like to call themselves as a part of this D Genius. I would love to be part of this D Genius, but as a National Secretary of Diabetes India, I welcome all the delegates, all the faculty member, and it's very appropriate time that today we are discussing on a very important topic on diabetes and Ramadan. Rather, I will request from next year onward, we should do this meeting 1 month before. This year, what I could do from my clinic, actually, we have done camp in areas where a lot of Muslim people are there, and in Masjid also we, send the flyers that pre-Ramadan they should be checked for their fasting. They should come to their medical advice. They should get the medical advice, and it was free of charge, which we have done. And I request all of you from next year onward. I think this can be a good society service, social service from our side, because there are two varieties of patients. Some of them are diabetes, but they have a misconception that because of diabetes they can't fast. And there is also a misconception that everyone should fast. So sometimes a frail, elderly person having premix on insulin or a sulfonylurea, having higher risk of hypoglycemia, they also fast. So I mean, both these concept wise and awareness wise, I think it is our duty that we should help the society for that. So, who should fast and who should not fast? Maybe now with the modern medicine, I can say only hardly you will able to say 1 or 2% of the people that they should not fast. Otherwise, we can safely tell everyone that yes, they can fast if they want to or they wish. The second important thing we also should teach primary care physicians who are working and they have a lot of patients who wants to fast. So I mean that's also our duty as a doctor, as a diabetologist, that we should teach and educate primary care physicians. So I welcome the idea of D Genius Group and Rutul that very right time you are doing this webinar, and we will able to reach out thousands of the doctors, because every doctor have some or other patient who comes to them that fast. The third very important thing, diabetes and Ramadan is uh, a very 1 month systemic fast. I mean, to learn it is very easy for doctors and as well as for the patients. But through this diabetes and Ramadan, there are a lot of scientific paper which are published. We can gain the knowledge and we can use it for other fasting, because in other culture and in other religions they also do fast. May not be like Ramadan, which is very 1 month fast and absolutely from morning to evening, while some fast in Hindus where they can eat once in a day. Sometimes they can eat even fall fruit maybe 2 times also. So by knowing more through diabetes in Ramadan, because a lot of scientific publications are there, but similar things we can use for their fasting, because that is around the year, throughout the year, people keep on coming to us and they ask that, I'm doing Igyaras, I want to do Tuesday, I want to do Saturday. So what we should advise them? So I think today you are definitely going to talk more about diabetes and Ramadan, but in question answer you can take. But next time it can be on diabetes and fasting overall. And once again, I request all those young doctors who are joining, all those you are speakers, please do 1 month before Ramadan a social service, doing assessing all those who wants to fast appropriately, write the therapy for them that they can do fast easily, comfortably without hypoglycemia, and what they should eat during fasting time, because when fast is the break, a lot of people they take a lot of sweet also, that is not advisable. So all those things you can discuss. With these words, once again, thank you for inviting me on this wonderful platform, and I can see all of you
Again, highly enthusiastic, very, very young, dynamic, all young doctors of our D Genius group. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Before I give the mic to Hitesh, I would like to say that Dr. Yusuf was constantly telling me that we should do this program. Thank you very much, Dr. Yusuf. My pleasure. And because we could not do it before 1 month just because of Diabetes India, and we were left with very less days. So, but yes, we promise you that we'll bring next year this program prior to Ramadan, at least 1 month, and we'll definitely do exactly what Sir has advised us, that we should do some kind of social service to our patients who are diabetic, or even we should spread this message in community so that they can easily fast, and this myths and misconceptions should not be there. So with this, I'll hand over session to Hitesh and Dr. Yusuf for further proceedings. Uh, Thank you, Dr. Rutul. As Dr. Bansi rightly said, we belong to a country where a lot of people observe fast. But today we are going to concentrate on diabetes and Ramadan. For this, we have eminent diabetologist, a young, very eminent diabetologist from Hyderabad, Dr. Yusuf Khan, who practices at Dr. Yusuf Healthcare. He'll be taking as a moderator, and we have very three young diabetologists as well as beautiful panelists who is going to answer all your questions and the practical tips which will really help you. Dr. Yusuf, you can go ahead. So good morning once again, and thanks a lot to Bansi Sabu sir, the ultimate showman of diabetology, for his short and sweet message. And also would like to thank Dr. Rutul, the national convener of DGenius, for making this happen. So without much ado, we'll move forward, because this program is patient-centric mostly, and also many doctors are joining. So we'll communicate mostly in our, Hindi or Urdu plus English if you want to. तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो रमज़ान एंड डायबिटीज़ है। तो रमज़ान, एज वी नो, इज वन ऑफ द वेरी important period in for the Muslims, and there is 1 month of fasting, and it is not only spiritually benefiting but also physically it is beneficial. तो इसमें होता यह है कि फास्टिंग में, as you go on fasting for the coming days, the body detoxifies, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो भी बढ़ती है आपकी। सो इफ यू फास्ट इन द राइट वे, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे, तो हमको करना क्या है जिससे कि हमारा रमजान भी सक्सेसफुली गुजरे, प्लस हमारा हेल्थ भी ठीक रहे, स्पेशली डायबिटीज यानी शुगर लेवल्स। सो इस चीज को डिस्कस करने के लिए इंडिया के अलग अलग कोनों से हमारे साथ 3 एक्सपर्ट पैनलिस्ट आज हैं। नंबर 1 है हमारे डॉक्टर हामिद अशरफ साहब, प्रोफेसर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से। और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रुकैया सुरैया शेख, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड थायराइड स्पेशलिस्ट, ब्लू सर्कल क्लिनिक मुंबई। और श्रीनगर कश्मीर से हमारे साथ है डॉक्टर पीरजादा उवैस, ये है कंसल्टेंट इन डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी फ्रॉम सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्रीनगर। तो हम डिस्कस करेंगे पहले डॉक्टर हामिद साहब, आपको जो है एक पहला क्वेश्चन है कि किन डायबिटिक्स को रोजा रखना है और किन को रोजा नहीं रखना है, कैसे आप कैटेगराइज करेंगे पेशेंट्स को बिफोर रमजान? A very good morning and Assalamu alaikum to all of you. And I'm really thankful to the whole team of Diabetes India for giving me this opportunity. और ये जो क्वेश्चन है आपका, जैसे कि डॉक्टर बंसी ने कहा अभी कि 2 तरह के लोग होते हैं, किसी को रखना चाहिए, किसी को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हमें ये मालूम है कि हर इंसान थोड़ा अलग होता है, उनकी कंडीशंस अलग होते हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस अलग होते हैं। कोमॉर्बिड कंडीशंस का मतलब ये है कि अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल रेनल फेलियर है या नहीं है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रीवियसली हाइपोग्लाइसीमिया हुआ था नहीं हुआ था, पेशेंट एल्डरली या फ्रेल तो नहीं है, तो इन सब का एक रिस्क स्कोर है। आईडीएफ डार जो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन और रमजान डायबिटीज एंड रमजान अलायंस है, उसके थ्रू एक बहुत ही अच्छा एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स दिया गया है
और अच्छी बात यह है कि ये जो पैरामीटर्स हैं और इसमें जो रिस्क फैक्टर्स की जो स्कोरिंग है, इसको आई मीन ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टरों ने की पैनलिस्ट ने उसको आई मीन डिवाइस किया है, बल्कि डॉक्टरों की पैनलिस्ट ने उसको डिवाइस किया है। उसके बाद उसको जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जिसे हम मुफ्ती कहते हैं, खासकर वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजियस सेमिनारी इन इस्लामिक सेमिनारी जो जामिअतुल अजहर है कैरो में, मिस्र में, इजिप्ट में, तो उससे उसको बेसिकली इंडोर्स भी कराया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिकली जो भी काम हम करते हैं, फॉर एग्जांपल एज अ पार्ट ऑफ आवर इस्लामिक प्रैक्टिस, वो हमें ये समझने के लिए, हमें इनरिच करने के लिए, हमें अच्छा बनाने के लिए, हमें बेहतर बनाने के लिए, हमें परेशानी और मुसीबत में डालने के लिए नहीं है। तो वैसे ही डायबिटीज़ में भी हमें ये देखना है कि हमारा रिस्क कैसा है। तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि डायबिटीज़ टाइप 1 है या टाइप 2 है, उसकी स्कोरिंग है। और फिर ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ कितनी है, लेस देन 10 ईयर है, मोर देन 10 ईयर्स है। जिन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया अगर होता है, प्रीवियसली हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर हुई है या नहीं हुई है। एनदर चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें है कि हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। हाइपोग्लाइसेमिक विषय, जैसे कि हम जानते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया इज एसोसिएटेड विद टू काइंड ऑफ सिम्टम्स, वन इज एड्रेनर्जिक एंड अनदर इज न्यूरोग्लाइकोपेनिक। जो एड्रेनर्जिक सिम्टम्स होते हैं, ये पेशेंट को आई मीन दे आर लाइक वार्निंग सिग्नल्स, कि पेशेंट को अगर पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, ट्रेमर्स हो रहे हैं, एक्सट्रीम हंगर हो रहा है, एक्सट्रीम वीकनेस हो रही है, ये सारी चीजें सजेस्ट करती हैं कि शुगर लो जा रही है। लेकिन जब बार बार हाइपोग्लाइसीमिया रिकरेंट होता है, तो उसमें फिर ये जो वार्निंग साइंस हैं ये एब्सेंट हो जाते हैं। तो इसको पेशेंट सीधे न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स आ जाता है कि पेशेंट सीधे बेहोश हो जाता है, या उसको सीजर्स हो सकते हैं, पेशेंट डिसोरिएंटेड हो सकता है। तो ये हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, कि अगर किसी को हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस है तो डेफिनेटली ही इज नॉट ए गुड कैंडिडेट फॉर कीपिंग फास्ट। रोजा और रखना उनके लिए मुनासिब नहीं है, कि उसमें प्रॉब्लम हो जाए। उसके अलावा जो है कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल आपको सीकेडी है या नहीं है, पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक स्कोरिंग डिवाइस की गई, और ये बहुत आसान है कि अगर आप as a practicing diabetologist, those person who are treating patient of diabetes and they have this subset of patient who ask them when to fast or whether not to fast, तो अपने टेबल पे एक छोटा सा वो रख सकते हैं स्कोरिंग, एंड इफ यू कैन ट्रेन योर क्लिनिक स्टाफ, दे कैन ऑल्सो डू इट फॉर यू। उसमें अगर तीन कैटेगरी में आते हैं कि लो रिस्क कैटेगरी, दे आर सेफ टू, दे आर एडवाइज टू फास्ट, दे शुड नॉट ब्रेक देयर फास्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज। एंड अनदर इज मॉडरेट रिस्क, उसमें ये कि कुछ एजुकेशन के साथ उनको हम ओके कर सकते हैं। दे शुड मॉनिटर देयर ब्लड ग्लूकोज एंड दे शुड बी वेल अवेयर अबाउट द कंडीशन। और जो तीसरी सबसेट है वो हाई रिस्क कैटेगरी है। तो हाई रिस्क कैटेगरी को यूजुअली हम मना करते हैं, लेकिन अच्छे खासे हाई रिस्क कैटेगरी वाले पेशेंट भी इंसिस्ट करते हैं फास्टिंग के लिए। तो वैसे में उनको ये बताना है कि भाई आप यू कैन फास्ट मैन, यू कैन ट्राई, और अगर आपने कोशिश की, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, यू शुड चेक योर ब्लड ग्लूकोज, एंड इफ इट इज गोइंग टू लो, लेस देन 70, टू हाई, मोर देन 250 और 300, डेफिनेटली यू शुड ब्रेक फास्ट। So with these teaching, we can categorize our patient into low, moderate and high risk, and after that we can tell them कि कौन exempted है और कौन exempted नहीं है, और कहाँ पे येलो सिग्नल है कि आपको थोड़ा जो है ट्रैफिक देखनी है, फिर उसके हिसाब से आपको अपनी गाड़ी ड्राइव करनी है। तो जैसे हाँ डॉक्टर हामिद ने बताया कि हमको तीन कैटेगरीज में पेशेंट्स को डिवाइड करना है, और रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन स्कोर एक छोटा सा पेपर अगर हम क्लिनिक में रखें और प्री रमज़ान अगर पेशेंट्स को स्क्रीन करें, तो ये पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और डॉक्टर हामिद ने सही बताया कि इन स्पाइट ऑफ इंसिस्टिंग, कई लोग दे वांट टू फास्ट, यानी एडवाइस अगेंस्ट करने के बावजूद, और डेटा ये बताता है कि 70% ऑफ टाइप 2 डायबिटीज दे फास्ट द होल मंथ, और टाइप 1 में भी ऑलमोस्ट 40% लोग फास्ट करते हैं। तो आई विल कम टू डॉक्टर अवेस। डॉक्टर अवेस, अगर रोजे में किन पेशेंट्स को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी चार ज्यादा जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या है, और इनसे हम कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें। तो जैसे डॉक्टर हामिद ने आपको रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन जो स्कोर बताया, ये बेसिकली इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और डायबिटीज एंड रमदान इंटरनेशनल अलायंस ग्रुप, उनका गाइडलाइन 2021 में पब्लिश हुआ था। ये रिकमेंडेशन वहां से आई थी।
तो ये जो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन स्कोर इसलिए करना था ताकि जो लोग जो जिनको डायबिटीज है और जो रोजा रखना चाहते हैं उनको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो जिससे सबसे ज्यादा खतरा रहता है और जिससे ज्यादा डर रहता है लोगों को, वो है लो ब्लड शुगर, दैट इज हाइपोग्लाइसेमिया इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी। लोगों को जो फास्ट रखते हैं, खासतौर जो इंसुलिन करते हैं या जो ऐसे मेडिसिन है जिनको हम सल्फोनाइल यूरिया कहते हैं, जैसे ग्लिमिप्राइड है, ग्लिक्लाजाइड है, इन लोगों को लो ब्लड शुगर का रिस्क रहता है। सो ये एक रिस्क है, मेजर रिस्क फैक्टर। दूसरा जो है, हाई ब्लड शुगर भी हो सकता है। जैसे लो हो सकता है तो हाई भी हो सकता है, क्योंकि रमजान जो है, इट इज द मंथ ऑफ फास्टिंग एज वेल एज फीस्टिंग। लोग जरूरत से ज्यादा रमजान में खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा होता है। तो इफ्तारी के टाइम वो हाई शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, खजूर वगैरह ज्यादा लेते हैं, तो उनसे हाई शुगर भी हो सकता है। दिस इज सेकेंड रिस्क ऑफ फास्टिंग। थर्ड जो है तो थोड़ा बहुत रेयर है, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये खास तौर एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में होता है जिनको टाइप 1 डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन की कमी होती है और इनको अक्सर 4 बार इंसुलिन देना पड़ता है दिन में। तो अगर ये प्रोलॉन्ग फास्ट रखेंगे और इनका शुगर हाई जाएगा, इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, तो इनकी जिस्म में कीटोन बॉडीज बन सकती है जिनसे एसिडोसिस हो सकता है। एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बट रेयर है। तो ये एक थर्ड रिस्क फैक्टर है। और चौथा जो रिस्क फैक्टर है वो है डिहाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि प्रोलॉन्ग फास्टिंग से आपका फ्लूइड इनटेक कम हो सकता है, और कुछ दवाइयां ऐसी भी है शुगर की जिनसे डिहाइड्रेशन हो सकता है और उसके कारण थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। सो इनसे कैसे बचा जाए, पहले तो आई थिंक जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमें कि ये जो मरीज है इसको हाई रिस्क है या मॉडरेट रिस्क है, लो रिस्क है। अगर किसी को लो रिस्क है तो उनमें ये रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है। अगर किसी को हाई रिस्क है तो उनमें तो ख्याल रखना पड़ेगा, उनमें प्रॉपर हमें एक तो डोज मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी दवाइयों की। आई थिंक हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ डॉक्टर अवेश, वी तो मूव फॉरवर्ड बिकॉज आगे हम ये डिस्कस करने वाले ही हैं एनीवे। जी। डॉक्टर रुकैया, अगर कोई पेशेंट फास्टिंग में है तो उनको पता कैसे चले कि यानी शुगर बिल्कुल लो हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया, या शुगर बिल्कुल ज्यादा हो रहा है, तो क्या सिम्टम्स रहेंगे इन डिटेल जरा बता सकते हैं? So first of all, thank you very much and good morning, everyone. Thank you, D Genius, for this opportunity. And डॉक्टर हामिद, डॉक्टर ओवेस और सबने बहुत अच्छे से बताया है कि हम रमजान में फास्ट कर रहे हैं एंड वी नीड टू टेक केयर। पहली चीज है कि हर डायबिटिक पेशेंट को बोलना है कि आप अपना रेगुलरली शुगर चेक करें, बिकॉज बहुत बार जैसे डॉक्टर हामिद बोल रहे थे कि हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस, पेशेंट को पता ही नहीं होती है कि उसकी शुगर कम हो रही है। सो पेशेंट को समझाना है कि आप अपनी शुगर टेस्ट कर सकते हैं, रोजे में भी आप अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। तो लो शुगर जब जिसके लिए हम सबसे ज्यादा चिंतित है, डॉक्टर को भी चिंता है कि इसको मैंने रोजा रखने बोल दिया और इसकी शुगर लो हो गई तो, और पेशेंट भी परेशान है कि मैं 12 घंटे नहीं खाने वाला हूँ और मेरी शुगर लो हो गई तो उसको हम जब हम ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं तो हम बोलेंगे कि जब शुगर आपकी 70 से कम हो रही हो तब इसे लो शुगर बोला जाता है। लेकिन बहुत उसके पहले ही कई बार पेशेंट होते हैं जिन्हें इसके सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसको हम बोलेंगे कि उन्हें पसीना आने लगा, थरथरी आने लगी, घबराहट सी होने लगी, अचानक कमजोरी आ गई, चक्कर से आने लगे, और बहुत ज्यादा अगर लो हो जाती है तो लोग बेहोश भी हो जाते हैं। तो पहला चीज करना है उसके लिए कि आप अपनी शुगर टेस्ट करें। अगर आपको पता नहीं है, आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं है, तो आप शुगर टेस्ट करने ना जाए और आप तुरंत अपना रोजा खोल दें। सो यू कैन नॉट वेट कि ये मैं पेशेंट इतने ही वो इतनी कोशिश करना चाहते हैं कि हम अपना रोजा कंप्लीट कर ले, मैडम कुछ भी हो जाए ये रोजा मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जरूरी ये है कि पहले वो अपनी जान की ध्यान दे और फिर उसके बाद वो रोजा अमल कंप्लीट करे। एक दूसरा होता है कि शुगर हाई भी हो सकती है कई बार, जैसे डॉक्टर ओवैस बोल रहे थे कि फास्टिंग एंड फीस्टिंग दोनों होता है, तो इफ्तारी में फीस्टिंग होती है एंड फास्टिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सहरी। सो जो शाम का खाना होता है वो एक बड़ा सा दस्तरखान पे बहुत सारा 2-3 टाइप के तुम्हारे शुगर ड्रिंक्स होंगे, फ्राइड फूड होगा, खजूर होगा, फ्रूट्स है। सो हर हर चीज जो दस्तर पे होती है, और पेशेंट को लगता है कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा चख रहा हूँ, बट उसमें भी फॉर अ डायबिटिक पेशेंट वो काफी ज्यादा हो जाता है। और उस वजह से क्या हो जाता है कि पेशेंट की शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
एक रोजे में नहीं पता चलता है, बट जब पेशेंट रेगुलरली इतना ज्यादा खाना खाने लगता है तो उसकी शुगर बढ़ जाती है। जैसे उसका मुंह सूखने लगता है, बहुत प्यास लगने लगती है, रात को पेशाब के लिए बार बार उसे जाना पड़ता है। जब बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे टाइप 1 पेशेंट हो और उसने अपनी इंसुलिन नहीं ली हो, वो इंसुलिन लेना भूल गया हो और उसने बहुत सारा खाना खा लिया है एंड इंसुलिन नहीं ली है या कम डोज ऑफ इंसुलिन लिया है बिकॉज उसे लग रहा है मेरी शुगर कम हो जाएगी, तो उसकी शुगर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है। तो जिसके लिए पेशेंट को उल्टियां भी शुरू हो सकती है, पेशेंट की ब्रीदिंग में मुश्किल आ सकती है और पेशेंट को फिर इमिडिएटली शुगर चेक करके उसे शायद हॉस्पिटल भी भेजना पड़े। जो हाइपर कीटो एसिडोसिस होता है वो जनरली जब शुगर हमारी 300 से ज्यादा बढ़ जाती है, बट उसके पहले ही जब शुगर 250 के आसपास हो जाती है तो ये सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे प्यास बहुत लगना, पेशाब के लिए बार बार जाना, वजन कम होता जाना, चक्कर आना, ये सब शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ये अच्छे कुछ से डॉक्टर सिम्टम्स ने है आपने जिसको बताया। लोगों को ध्यान देना चाहिए। या आई थिंक कई बार यही होता है कि लोग सोच पड़ते हैं कि मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक करना है, हम्म। यानी पशुपेश में रहते हैं और कई बार दे लैंड अप इन द आईसीयू। तो आई यस। थिंक अप्रोप्रिएटली चेक करना और इमीडिएट डिसीजन लेना इसमें जरूरी हो जाता है। हम्म। कमिंग टू डॉक्टर अवेश, डॉक्टर अवेश किन हालात में रोजा तोड़ने की आप एडवाइस देंगे अपार्ट फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया एज पर द गाइडलाइंस? देखिए, जैसे डॉक्टर रुकिया ने कहा कि अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल 70 से नीचे होती है विदाउट सिम्टम्स इवन, आपको इट इज रिकमेंडेड कि आप ब्लड शुगर अपना सॉरी आप अपना रोजा खोलिए। तो या अगर 300 से ऊपर जाता है देन यू शुड ब्रेक द फास्ट। बट अगर आपको शुगर नॉर्मल भी है मगर सिम्टम्स लो ब्लड शुगर के हैं, आपको थरथराहट है, पैल्पिटेशंस है, पसीना ज्यादा आ रहा है, भूख लग रही है, तो उस सूरत में भी आप अपना रोजा खोल लेना चाहिए। और या अगर आपको कोई एक्यूट इलनेस हो गई ड्यूरिंग रोजा, तो उस टाइम पे भी आपको रिकमेंडेड है कि आप अपना रोजा खोलिए। और और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी का ब्लड शुगर 70 से 90 के बीच में है ड्यूरिंग अर्ली आवर्स ऑफ फास्टिंग, तो उनको रिकमेंडेड है कि वो एवरी आवर वो अपना ब्लड शुगर चेक करें। अगर उनकी शुगर 70 से नीचे जा रही है तो दे शुड ब्रेक देयर फास्ट। या अगर किसी की 250 से ऊपर जा रही है दे शुड मॉनिटर। अगर रिपीटेडली आ रही है तो उनको रिकमेंडेड है कि आप अपनी रोजा रोजा आप खोलिए। इस ताल्लुक से मैं डॉक्टर हामिद आपसे एक सवाल करना चाह रहा था कि फर्ज करिए अगर आफ्टरनून टाइम में हाई शुगर्स है, अबोव 300 डिटेक्ट हुआ है, तो कैन द पेशेंट टेक इंसुलिन, आफ्टरनून इंसुलिन एंड देन कंटिन्यू द फास्ट? बिकॉज कुछ फतवे ऐसे भी है कि आप इंसुलिन दिन में ले भी सकते हैं। तो इस सूरत में आप क्या कहेंगे, मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से? इसमें बेसिकली पेशेंट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे हम। एक तो टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 1 में अगर इफ अवेलेबल देन यू शुड गो फॉर द कीटोन बॉडीज। अगर आपके पास कीटोन स्ट्रिप्स हैं, कीटोन बॉडीज पॉजिटिव हैं, देन आपको इंसुलिन भी लेना है और खाना भी खाना है। अगर कीटोन बॉडीज नेगेटिव हैं देन डेफिनेटली 1-2 यूनिट इंसुलिन लेने से थोड़ी शुगर कम हो जाएगी आपके। और कीटोन्स नेगेटिव है देन यू कैन एक्सटेंड इट फॉर सम टाइम। और टाइप 2 पेशेंट्स में दैट विल डिपेंड मोस्टली ऑन सिम्टम्स। अगर कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है और पेशेंट थोड़ा सा रिलेक्टेंट है तो ऐसी कंडीशन में हम उसको कह सकते हैं कि यू कैन, अगर पेशेंट इंसुलिन ले रहा है फॉर एग्जांपल ओएचए पे है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। और पेशेंट सिम्टोमेटिक है एंड ही हैज फॉर एग्जांपल, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक्सेस फॉर एग्जांपल समवन इज लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ अ मेडिकल कॉलेज और जहाँ डॉक्टर हैं उससे 1 किलोमीटर दूर है, 5 मिनट लगते हैं उसको आने में। तो अगर उसको एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, अच्छा है, और पेशेंट इज़ वेल एजुकेटेड और उसको सपोर्ट फैमिली भी अच्छी है और दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स विच इज़ गोइंग टू हैपन, तो ऐसी सिचुएशन में उसको कह सकते हैं कि गार्डेड तौर पे कि आप रोज से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन टाइप 1 पेशेंट्स में अगर मोर देन 3, इनफैक्ट इफ इट इज़ मोर देन 250 एंड कीटोन्स आर पॉजिटिव, they should take insulin and they should eat both the things. It is absolutely necessary, otherwise a patient can land in DK. और एक बार जब आपको DK हो गया, it's not only the patient who is suffering, the whole family gets disturbed because of this. तो कीटोन्स अगर अवेलेबल हैं तो उसको करना चाहिए, अगर नहीं अवेलेबल है तो बेटर इज टू ब्रेक द फास्ट। लेकिन कोई इंसिस्ट कर रहा है
तो उसमें ये है कि उनको हम ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आप 1-2 यूनिट या इंसुलिन लगा लें और अपने आप को मॉनिटर करते रहें। अगर आपको एक्सट्रीम हंगर नहीं हो रहा है, लिथार्जीनेस नहीं हो रही है या नौसिया फील नहीं हो रहा है, इफ़ यू आर एसिम्टोमेटिक एंड फीलिंग फाइन, यू कैन कंटिन्यू विद इट। तो ऐसा किया जा सकता है मेरे ओपिनियन में। तो आपका कहना ये है कि अगर टाइप 1 डायबिटिक्स हैं तो बेहतर है कि कीटो स्ट्रिप्स घर में रखें, बिल्कुल। हाँ। हैंडी रखें। जी जी जी। और एक चीज और इसमें मिस हो गई कि अगर इंसुलिन हम लेते हैं आफ्टरनून, फॉर एग्जाम्पल रूटीनली अगर कोई इंसुलिन ले रहा है, तो इससे रोजा टूटेगा या मकरूह होगा, या कैन टेक इट, आई मीन टाइप 1 डायबिटिक खास में। नहीं, इंजेक्शंस कोई सा भी लेना। फॉर एग्जांपल अगर किसी को पेन हो रहा है, उसको इंजेक्शंस की ज़रूरत है या इंसुलिन के इंजेक्शंस की ज़रूरत है, तो इट कैन बी सेफली टेकन, इट डज नॉट इनवैलिडेट द फास्ट। कि रोज़ा तोड़ने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको जो नॉर्मल वे है चीज़ों को बॉडी के अंदर पहुंचाने का, कि मुंह के ज़रिए हम खाना खाते हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि मुंह के ज़रिए से खाई जाए, और दूसरी चीज़ ये कि खाना खाई जाए या ऐसी चीज़ें खाई जाए जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है, आपको ताकत मिलती है। तो उसमें जो आई मीन जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये जो इंजेक्शन है, दे आर नॉट समथिंग विच इज गिविंग अस एनर्जी। तो डेफिनेटली इट कैन बी सेफली टेकन, इट डज नॉट इनवैलिडेट द फास्ट। फास्टिंग पे आपके कोई असर नहीं होगा, आप इंसुलिन भी लगा सकते हैं। और इन केस अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कोई और इंजेक्शन भी लगाना, रीनल कोलिक हो रहा है आपको, तो यू कैन गेट अ इंजेक्शन ऑफ ओवेरॉन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दैट्स वेरी क्लियर। कमिंग बैक टू डॉक्टर रुकैया, हम्म। ये एक स्पेशल पॉपुलेशन है प्रेग्नेंट लेडीज, जिनमें हम्म। मीडियम है, या पहले से डायबिटीज था और अब वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं, या लैक्टेटिंग मदर्स जो बेबी को फीड कर रहे हैं। इन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि फास्टिंग आराम से गुजरे? सो अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको फास्टिंग इज नॉट रिकमेंडेड, आई मीन इट इज नॉट कंपल्सरी। उसको उसको दिया गया है कि तुम अगर चाहो, अगर तुमसे हो सकते हैं रोजे तो आप रखो, अगर आपसे नहीं रोजे हो बन पा रहे हैं तो आप उसकी कज़ा बाद में कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग पेशेंट को अंडरस्टैंड करना है कि ये मेरे पे कंपल्सरी नहीं है, जो वरना फर्ज है। सो पहले तो वो उसके ऊपर से वो प्रेशर कम हो जाता है कि एग्जैक्टली। मुझ पे फर्ज नहीं है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड, अगर पेशेंट रोजा रखना चाहती है तो उसे समझना है कि उस पर भी वही सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे शुगर लो हो जाना, या उसको भी शी कैन गेट प्रोन टू बिकम हैविंग डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जैसे शुगर बढ़ भी सकती है। और ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड कैन गेट अफेक्टेड अगर वो ठीक से खाना नहीं खा रही है तो इसीलिए वो बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट अगर अगर मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ पेशेंट को, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो कि तुम रोजा रखो, बट अगर रोजा इंसिस्ट वो करते हैं तो उसे मॉनिटर करना है। उसे गायनेकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मॉनिटर करना है ताकि द बेबीज ग्रोथ इज फाइन, द लाइकर इज नॉट रिड्यूसिंग, है ना। एक वो देखना है, और दूसरा हमें देखना होता है कि द शुगर इज नॉट कमिंग लो, शुगर उसकी बहुत लो नहीं हो रही है और बहुत बढ़ नहीं रही है। और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनको ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि शुगर नहीं कम होती है उनमें, बट ज्यादातर उनमें डिहाइड्रेशन सेट इन हो जाता है, बिकॉज 12-13 घंटे तक पानी नहीं पी रहे होते हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से मिल्क सप्लाई कम हो जाती है। तो उनको बहुत दिक्कत होती है कि हम वो फास्ट कंटिन्यू कर पाए। हो जाता है कि वो उनकी शुगर भी कभी कभी लो हो जाती है, अगर पेशेंट इज अ टाइप 1 डायबिटिक एंड अगर वो लैक्टेटिंग है तो उनकी शुगर भी कभी कम हो जाती है। तो वन इज शुगर मॉनिटरिंग, और उनको बहुत ध्यान रखना है अपनी सहरी और इफ्तारी में, कि वो सहरी अच्छे से पेट भर के खाए, ताकि द मॉर्निंग ताकि उसमें एनर्जी हो, वो दिन भर सस्टेन कर सके। वो बहुत सारा पानी पिए सहरी में ताकि शी इज एबल टू सस्टेन, एंड वो डिहाइड्रेशन ना हो जाए उसे। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी टेक केयर ऑफ। या क्योंकि अभी डिप्सी का कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है हैदराबाद में, हम्म। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप। ये भी एक दे आर मोस्टली डिस्कसिंग ऑन दिस आल्सो, दिस एस्पेक्ट। हाँ। बहुत अच्छे से आपने बताया। डॉक्टर अवैस, हम मॉनिटरिंग किस तरह से करें, मतलब रमजान में कितने फ्रिक्वेंटली करें और किस टाइम पे करें एज पर द गाइडलाइंस? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सबको कि ब्लड शुगर चेक करने से आपका रोजा नहीं टूटता है, तो आप अपना ब्लड शुगर मॉनिटर कर सकते हैं ग्लूकोमीटर से। सो जो रिकमेंडेशंस हैं वो है आप मल्टीपल टाइम्स करें, खासतौर जो इंसुलिन ले रहे हैं। एक तो प्री सहूर, सहरी से पहले आप अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए।
तो उसी अकॉर्डिंग आप अपना इंसुलिन का डोज एडजस्ट कर सकते हैं या मेडिसिन का डोज एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड है जो मिड डे लाइक आफ्टरनून में या असल प्रेयर से पहले आप शुगर चेक करें, और इफ्तारी से पहले और इफ्तारी के 2 घंटे के बाद। और अगर कभी भी आपको सिम्टम्स लगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, लो ब्लड शुगर के सिम्टम्स लगे या हाई ब्लड शुगर के सिम्टम्स लगे, तो आपको अपना ब्लड शुगर चेक करना चाहिए। गाइडलाइंस में तो 7 पॉइंट शुगर बताया है, तो बट थोड़ा इनकन्वीनियंट है मल्टीपल टाइम्स शुगर चेक करना। बट जो हाई रिस्क कैटेगरी है, जो रिस्क जिनमें मॉडरेट टू हाई रिस्क है, और जो इंसुलिन कर रहे हैं, सल्फोनाइल यूरियाज जिनको चल रहा है, तो उनको मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए, स्पेशली पहले 3-4 दिन, ताकि उनको थोड़ा आइडिया आए कि उनकी फास्टिंग से उनकी शुगर कैसे बिहेव कर रही है। सो आइडियली 4 टाइम्स, बट डिपेंड्स कि व्हाट कैटेगरी ऑफ पेशेंट वी आर डीलिंग विथ। बिकॉज कई सारे पेशेंट वो रिलेक्टेंट होते हैं, मतलब इतने सारे बार प्रिक करने के लिए। तो अगर सिर्फ 2 बार प्रिक का अगर ऑप्शन दे तो किस वक्त देना बेहतर होगा? मतलब इस क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल। अगर 2 वक्त हम करना चाहें, यानी एक फास्टिंग का हो जाए और प्रांडियल का, तो किस वक्त बेटर रहेगा? इफ्तारी से पहले और इफ्तारी के 2 घंटे बाद। डॉक्टर हामिद। That is fasting and PP. That is what I tell my patients. एग्जैक्टली मैं भी यही कर रहा हूँ मोस्टली। असर के हाँ, वक्त एक बार 4 to 5 के बीच में, फिर यस, इफ्तारी के 1.5-2 घंटे बाद। डॉक्टर हामिद, दो आपका क्या घंटे कहना है? डॉक्टर हम हामिद का फ्रीज हो गया है। डॉक्टर हामिद। टेक्निकल टीम, कैन यू कनेक्ट टू डॉक्टर हामिद? Yeah, he has डिस्कनेक्ट a हो गया। network glitch, so हम्म he has Anyway, to we'll join. move forward. हम्म तो डॉक्टर अवेश, आई मीन टेकिंग इट फॉरवर्ड, CGMS क्या आप रूटीनली यानी एडवाइस करेंगे, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज में प्री रमजान फॉर 14 डेज पीरियड? तो आइडियली अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस तो रिकमेंडेड नहीं है कि सब में हम सीजीएम का यूज करें। बट अगर कोई बहुत हाई रिस्क है, जैसे किसी को हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस है, तो उनमें हम यूज कर सकते हैं सीजीएम। और अगर किसी को रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहे हैं, तो उनमें हम यूज कर सकते हैं। कोई इंटेंसिव इंसुलिन मैनेजमेंट पे है, तो उनमें यूजफुल हो सकता है सीजीएम। बट रूटीनली इट इज नॉट एडवाइज्ड कि आप सीजीएम यूज करें। बट हम अगर हम एसएमबीजी करते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज विथ ग्लूकोमीटर, वो सफिशिएंट रहेगा। बट इन स्पेशल पॉपुलेशन, हाइपोग्लाइसीमिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनमें अगर वो पहले तो उनको हमें ये बोलना है कि यू शुड नॉट फास्ट एज पर द गाइडलाइंस। तो बट अब इफ दे स्टिल इंसिस्ट टू फास्ट, देन सीजीएम कैन बी यूज्ड इन दोज स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल। डॉक्टर हामिद, अगर हम ये पूछ रहे थे कि अगर 2 बार प्रिक करना है, यानी इंस्टेड ऑफ द मल्टीपल प्रिक्स दैट इज रिकमेंडेड बाय IDF गाइडलाइंस, तो कौन से वक्त आप प्रिक करना पसंद करेंगे? Sorry, there was some disruption in the network. Definitely, जो डॉक्टर वैस ने बताया 7 point monitoring that is recommended by the IDF and DAR, but many times this is very cumbersome. तो उसमें जो हमें उस टाइम सबसे ज़्यादा करना चाहिए जब हमें रिस्क सबसे ज़्यादा है। तो हाइपोग्लाइसीमिया का जो रिस्क सबसे ज़्यादा होता है वो होता है प्री इफ्तार, मतलब असर से मगरिब की नमाज के बीच में। तो वन शुड डू एट दैट टाइम, स्पेशली जिनके डायबिटीज थोड़े से अनस्टेबल हैं, रिसेंटली ट्रीटमेंट चेंज हुआ है, या प्रीवियस हाइपोग्लाइसीमिया की हिस्ट्री रही है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइपोग्लाइसीमिया जिन भी पेशेंट को हम क्लिनिक्स में देखते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम्स यू टेक हिस्ट्री एंड यू डिग डीपर, देन यू विल कम आउट दैट मील्स वर डिलेड, सो दैट वाज द कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। सिमिलरली रमज़ान में ये हो सकता है। तो एक तो हो गया प्री इफ्तार, और फिर जैसे हमने बात की कि रमज़ान इज़ नॉट ओनली अबाउट फास्टिंग बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट फीस्टिंग। स्पेशली आपके यहाँ तो हलीम वलीम चल रहा होगा अभी काफ़ी। भाई ये तो खिलाएंगे, आपको भी खिलाएंगे, आइए आप हैदराबाद। तो फीस्टिंग में फिर अफ्तार के बाद जो है इट कैन गो वेरी हाई। सो हम जो अफ्तार कर रहे हैं, हम हमारे रोजे की वजह से शुगर डाउन तो नहीं हो रही है। और इफ्तार में अगर हम आई मीन वी आर टेकिंग एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल दोस, एंड इफ द sugars are going very high, that also tells us that we need to cut our carbohydrates and we need to reassess our iftar meal. तो मैं पेशेंट को यही सजेस्ट करता हूँ अपनी क्लिनिक में कि एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ रमजान, बिफोर इफ्तारी एंड आफ्टर टेकिंग इफ्तारी, यू शुड चेक योर ब्लड ग्लूकोज। दैट विल गिव यू एटलीस्ट सम आइडिया कि हो क्या रहा है आपके साथ। तो एक हम्म कंसेंसस ये बना है कि यानी बिफोर इफ्तार
and then Yes. 1.5 hour after And iftar any high risk patient उसे CGM लगा दो. CGM, जैसे आपने बताया Yes. GDM केसेस हैं या टाइप 1 डायबिटिक्स है, उनमें बिल्कुल CGM यूज बिल्कुल. कर सकते हैं। Those who can afford CGM during Ramadan, उसको लगाना चाहिए. I mean, especially those who are on insulin, those who are type 1, those who are Yes. GDM. और GDM हमारी क्लिनिक चल रही है. We have around almost data of around 250, 2500 पेशेंट. तो इस बार रमजान से पहले तो नहीं असेस कर पाए कुछ, बट पोस्ट रमजान I will try to bring out some data वेरी from our नाइस, center. वेरी Yeah, नाइस। in pregnant तो women. हाँ, इसी ताल्लुक से डॉक्टर हामिद, अब प्री रमदान ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मतलब किन मेडिसिन को यूज करना है कि नहीं यूज करना है, स्पेशली इंसुलिन का हम कैसे यानी मॉडिफिकेशन करेंगे? हाँ, तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्री रमज़ान आई मीन विजिट्स में. एक तो उसमें एजुकेशन, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन एंड एजुकेशन, फॉलोड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट. कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन है या इंसुलिन सेक्रेटोगॉग्स हैं लाइक सल्फोनिलूरिया. In that situation, they need modification because that can lead to hypoglycemia. So definitely they need modification. और कुछ ऐसे होते हैं कि देयर mechanism of action is independent of insulin, so they usually don't require any kind of modification. And modification also depends upon the patient's comorbid condition. For example, if someone is having CKD or someone is having previous history of hypoglycemia or multiple comorbid condition, then definitely there we should be more cautious regarding tight glycemic control, specifically during Ramadan. तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर उसमें ये भी कि प्री रमज़ान फॉर एग्जांपल कल एक पेशेंट आया, उसका HbA1c 9 था, तो उसने कहा डॉक्टर साहब मैं अपनी कोई दवाई कम करूं या नहीं करूं. मैंने कहा कि आपकी तो वैसे ही 250 चल रही है, कहाँ कम हो गई है. तो ऐसे सबसेट में हो सकता है वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ OHA मॉडिफिकेशन एटलीस्ट, या बेसल इंसुलिन का मॉडिफिकेशन. अगर शुगर्स हाई चल रहे हैं मोर देन 9% HbA1c, तो आई डोंट थिंक इफ दोज हु आर ऑन OHA और दोज हु आर ऑन बेसल इंसुलिन they require any kind of modification. Same treatment can be continued with the caveat that you should check your blood glucose more regularly. ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी जैसे हम सब ने बात की, तो मुझे लगता है कि जो पेशेंट सेक्रेटोगॉग्स पे होते हैं और इंसुलिन पे होते हैं, दे शुड डू मोर फ्रीक्वेंटली देन दोज हु आर टेकिंग medications which does not lead to hypoglycemia like metformin, gliptins and SGLT2 inhibitors or pioglitazone. और इसमें भी मॉडिफिकेशन में भी हम ये करते हैं कि स्पेशली दोज हु हैव प्रोपेंसिटी टू कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, उसको हम इफ्तार में शिफ्ट करते हैं. एंड दोज हु डज नॉट हैव प्रोपेंसिटी टू कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, उसको पेशेंट की मर्जी है वो इफ्तार में ले ले या सहरी के टाइम पे ले ले. और लेकिन जो पेशेंट का वेल कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल HbA1c 7.5 एनीथिंग लाइक दैट, और पेशेंट सल्फोनिलूरिया पे है, तो डेफिनेटली उसमें हम कोशिश करते हैं कि सल्फोनिलूरिया की डोज को एटलीस्ट हाफ कर दिया जाए. And it has to be taken with iftar rather than during sehri. अफ्तार के टाइम में उसको शिफ्ट करते हैं. बेसल इंसुलिन अगर कोई ले रहा है और शुगर्स वेल कंट्रोल्ड हैं, तो उसके बेसल इंसुलिन की डोज को भी 20-30% कम करना चाहिए हमें. और दोज हु आर टेकिंग मल्टीपल सबक्यूटेनियस डेली डोज ऑफ इंसुलिन, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम ये कर सकते हैं कि जो मॉर्निंग का प्री मील डोज होता है, बोलस डोज होता है, उसको इफ्तार में शिफ्ट कर देते हैं. और पेशेंट को ये भी बता देते हैं कि अगर आप इंजेक्शन इंसुलिन के लगाएंगे तो रोजा आपका टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा. तो फुल डोज कैन बी टेकन बिफोर इफ्तार. उसके बाद जो नाइट की डोज है वो हाफ यूजुअली हम बताते हैं पेशेंट को बिफोर सहरी. और अगर प्री लंच वाला डोज है, अगर कोई पेशेंट थर्ड मील लेता है, तो उसमें भी हम ये कहते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मील इट शुड बी इधर रिड्यूस टू हाफ, और कोई नहीं ले रहा है तो उसको स्किप कर लेना चाहिए. और अगर कोई फुल मील ले रहा है उस टाइम तो फुल डोज लेनी चाहिए. और अगर पेशेंट हमारा इतना समझदार है कि दे कैन डू कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग एंड पोर्शन मैनेजमेंट, दे नो if the patient is already using correction boluses and all those things, patient know ICR and other things, तो उसमें फिर ये है कि they can take in that way only. और अगर किसी को ICR और ये सब नहीं कर रहा है, तो उसमें ये है कि हम मतलब डोज को रिड्यूस कर देते हैं 50% ड्यूरिंग सहरी. और लंच वाला जो है, अगर वो ले रहा है थर्ड मील तो उसको दे सकते हैं कुछ डोज, नहीं ले रहा है तो स्किप कर देते हैं. और मॉर्निंग वाला जो फुल डोज है वो इफ्तार के साथ हम देते हैं. बिल्कुल I would सही, like to टेलर add मेड here. ट्रीटमेंट है, आप बता रहे हैं टेलर मेड है. हाँ हाँ. और मोस्टली नहीं, द ग्लूकोज डिपेंडेंट जो मेडिसिन हैं वो सुहूर में, और सिक्रोटोगॉग्स जो है इफ्तार में.
बट एक चीज मैं और करती हूँ कि अगर SGLT2 इनहिबिटर है तो उसे मैं शाम में शिफ्ट कर देती हूँ, बिल्कुल सही। एग्री, because फुली in the फुली morning हम्म। it फुली it एग्री। causes more UTIs, because then the patient is not going to drink water. So by just shifting the SGLT2 inhibitor in the evening, at least the chances of again UTI is lesser. तो इसमें एक और मैंने पेक्यूलियर प्रिस्क्रिप्शन, मैंने बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, somebody is already on LT4 रिप्लेसमेंट, लिवोथेरोक्सिन ले रहे हैं, हम्म प्लस हमने उनको ऑलरेडी सीमाग्लूटाइड ऐड किया हुआ है, राइबेलसेस, हम्म प्लस सम पीपल आर टेकिंग ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट, बिस्फोस्फोनेट्स है, जो कि हम्म। एम्प्टी स्टमक है। तो इन पेशेंट्स में नाउ दे आर आस्किंग हमको कब लेना है, यानी रात में लेना है या सहरी से पहले लेना है, या हम उसको कैसे एडजस्ट करें, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? Okay. So semaglutide is the first thing in the morning, empty stomach. और उसके आधे घंटे बाद थायराइड की टैबलेट या बिस्फोस्फोनेट। बिकॉज क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द स्नैक मैकेनिज्म सिमाग्लूटाइड अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा अगर हम उसमें थोड़ा भी LT4 अब्सॉर्प्शन रह गया है बाकी तो। बट वी कैन ऑल्सो, अगर पेशेंट का अनकंट्रोल हो जाता है तो थायरोक्सिन का डोज थोड़ा सा बढ़ जाता है कई बार आफ्टर पुटिंग द पेशेंट ऑन सेमाग्लूटाइड, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नहीं बढ़ता है बिकॉज पेशेंट वेट लॉस आ जाता है। सो बिकॉज द वेट कम हो जाता है वो LT4 का डोज उतने पे सेट हो जाता है। सो सबसे पहली चीज है, बिकॉज द pH ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसीलिए सेमाग्लूटाइड इज द फर्स्ट थिंग बिफोर एनी अदर मेडिसिन। एंड आप क्या उसके लिए कहेंगे डॉक्टर हामिद, डॉक्टर अवीस? हम्म हाँ, आई एग्री। सेमाग्लूटाइड। अच्छा, जी जी गो जी, डॉक्टर डॉक्टर। हामिद जी, गो अहेड। अच्छा, सेमाग्लूटाइड अब मेरे एक आध दो पेशेंट है, मैंने कहा आप कब लेना पसंद करेंगे, तो कहे नहीं, पहले मैं तो सेमाग्लूटाइड खा के पानी पी लूंगी फिर अफ्तार करूंगी। सो डॉक्टर रुकैया जो कह रही हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एटलीस्ट हाफ एन आवर शुड बी गिवन बिटवीन द मील्स एंड सेमाग्लूटाइड। तो कुछ पेशेंट के लिए फिर ये कि उनको सेरी में अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा पहले जगना पड़ेगा कि दे हैड एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, जिसमें कि वो सेमाग्लूटाइड ले लें और फिर जो है सेहरी करें। और दूसरा, सबसे टॉप पेशेंट मैंने बताया कि मतलब डायबिटीज इज ऑल अबाउट पर्सनलाइजेशन। मैंने है पेशेंट दे आर टेकिंग इट कि वो सेमाग्लूटाइड से ही रोजा खोल रहे हैं, उसके बाद इफ्तार जो है नमाज नमाज पढ़ के कर रहे हैं। So that is also one of the option if the patient wants like that. Otherwise, the bottom line is that half an hour of duration is very much required. यस और लीवोथायरॉक्सिन की जहाँ तक बात है, तो पेशेंट को भी उसमें भी मैं दो ऑप्शन देता हूँ कि अगर आप सेरी में, इफ़ यू आर एन अर्ली राइजर, आप पहले उठते हैं और तहज्जुद पढ़ते हैं और बाकी यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क इन द किचन, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, तो आपके पास टाइम है तो यू कैन टेक इट एट द टाइम। इफ it is not possible for you to take half an hour before, then the another good time to take levothyroxine is bedtime. At least 2 hours after any meal, levothyroxine can be taken. और डोजिंग की जहाँ तक लिवोथॉक्सिन की बात है, डॉक्टर रुकैया ने जैसे कहा कि डेफिनेटली वो चेंज होती है, वेट लॉस की वजह से भी चेंज होती है, कुछ स्नैक का इफेक्ट होता है जो कि लिवोथॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली डोज मॉडिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द TSH लेवल्स वो हमें करना चाहिए। डॉक्टर अवीस? आई वांटेड टू से द सेम थिंग, बट सेमाग्लूटाइड में एक इशू है कि यू हैव टू बी फास्टिंग फॉर 6 आवर्स। तो आइडियली आपको वो शहरी में ही वो आइडियल टाइम रहेगा। या तो आपको इफ्तार सेमाग्लूटाइड से ही करना है, देन यू हैव टू वेट हाफ एन आवर, देन यू कैन टेक मील। और बेटर इज यू टेक इट इन द शहरी टाइम। आप थोड़ा सा सवेरे उठिए और सेमाग्लूटाइड टैबलेट लीजिए, उसके हाफ एन आवर के बाद आप सहरी कीजिए। एंड जैसे डॉक्टर हामिद ने कहा कि लिवोथायरॉक्सिन जो उन्होंने शाम का कहा 2 घंटे के बाद एटलीस्ट, अगर आपका एम्प्टी स्टोमक है, यू कैन टेक लिवोथायरॉक्सिन दैट टाइम ऑल्सो। टू समराइज, आई थिंक, टू समराइज, बेड टाइम लिवोथायरॉक्सिन, बिकॉज कई बार शहरी में उतना वक्त होता नहीं है लोगों के पास कि भाई इतने सारे टैबलेट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेडीज दे आर बिजी विद द शहरी वर्क, तो आई थिंक बेड टाइम 2 hours आफ्टर द मील लिवोथायरॉक्सिन, और मॉर्निंग हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स शहरी से पहले सीमाग्लूटाइड। इज इट ओके? यस यस। मूविंग फॉरवर्ड, डॉक्टर रुखैया, सबसे अहम डिस्कशन पे अभी आएंगे कि सुहूर और इफ्तार, आइडियल सुहूर एंड इफ्तार की प्लेट क्या होनी चाहिए, बिकॉज अभी IDF और डार का जो है एक रमदान प्लेट दे हाँ एडवाइस कि भाई उसमें कार्ब्स और प्रोटीन्स और फैट का
they have divided like 45 to 50% of carb, then 30%, around 30-35% protein, and the rest fat. तो इंडियन सिनेरियो में आइडियल सुहूर और इफ्तार की प्लेट क्या होनी चाहिए, और टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बिल्कुल अवॉइड करने वाली चीज क्या है? ओके, तो पहले सुहूर। सुहूर का हम सुहूर क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द गोल ऑफ सुहूर? हमको एक एनर्जी लेनी है विच विल गिव यू सम स्टेडी एनर्जी ऑल थ्रू द डे एंड प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। हम सुहूर इसलिए कर रहे हैं, राइट, ताकि दिन भर एनर्जी मेंटेन रहे और शुगर कम नहीं हो जाए। तो वो लेने के लिए कार्ब्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर हम सिंपल कार्ब्स लेंगे तो वो शुगर फास्ट बढ़ेगी और फास्ट कम भी हो जाएगी। तो इसीलिए उसको लेना है हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ठीक है। और उसमें हमें ऐड कर देना है हाई फाइबर। तो जब हम हाई फाइबर कार्ब्स लेते हैं, जैसे होल व्हीट ब्रेड हो गया, ओट्स हो गया, या तलबीना हो गई जो बार्ली होता है, ओके, या अगर हम तो ये सब जो होता है वो होता है हाई फाइबर कार्ब्स। इसके साथ में अंडे, प्रोटीन। So boiled eggs are the great source of energy which will sustain the energy after 2 p.m. तब आएगा प्रोटीन। So protein will give you energy after 2 p.m. So boiled eggs है, या योगर्ट हो गया, दही ले लिया आपने साथ में, so that is going to give you protein at that time. Healthy fats, खजूर सिर्फ इफ्तारी में नहीं, I tell the patients आप खजूर सहरी में भी खा लो, okay, that will again give you some satiety and it will give you energy to maintain so that it does not give you hypoglycemia. या आपने बादाम ले लिया, आपने अखरोट ले ली, यू हैव सम नट्स इन द मॉर्निंग एट एट इफ्तार टाइम, एट सहरी टाइम, सॉरी, और बहुत सारा पानी पियो। आई टेल द पेशेंट्स की अवॉइड चाय कॉफी, अवॉइड करो सवेरे। लेकिन कुछ होते हैं जिनको जरूरत होती है कि मैडम वो चाय नहीं पीते हैं तो दिन भर हमारा सर दुखता है। सो आई टेल देम दैट ओके देन यू ईदर हैव अ, उसमें आप शक्कर मत डालो, और यू हैव अ ब्लैक कॉफी। सो आइडियल सुहूर प्लेट वुड बी हैविंग योर रोटीज, अंडा रोटी, और आपने साथ में दही ले लिया, और आपने थोड़े नट्स ले लिए। दैट्स एन आइडियल एंड इट इज वेरी इजी फॉर एवरीवन टू फॉलो इट। इट डज नॉट टेक टू मच टाइम ऑल्सो टू मेक इट एंड इट इज वेरी इजीली डुएबल। तो वो मैं बोलूंगी कि वो एक आइडियल सहरी हो गई। इफ्तार हम क्यों कर रहे हैं? जो हमारी दिन भर की एनर्जी हमने लूज की है, सो हमें वो एनर्जी को रिप्लेनिश करना है। और उसके साथ में अगर डायबिटीज है तो वी डू नॉट वांट कि हमारे शुगर स्पाइक हो, तो इसीलिए हमको स्लो रिलीजिंग कार्ब्स लेना है। अगेन ओवर देयर अगर हम फास्ट रिलीजिंग कार्ब्स लेते हैं तो स्पाइक आ जाएगी, तो शुगर पोस्ट लंच ज्यादा आएगी। फिर डॉक्टर हामिद और उवैस और मैं बोल देंगे कि आपका रोजा रखना मना है, बिकॉज आपकी आफ्टर लंच शुगर ज्यादा हो रही है, राइट। तो इसीलिए हमें जो इफ्तार है शुरू करे उसे पानी और फिर डेट से, एंड डोंट हैव शुगरी ड्रिंक्स। तो मतलब जो रूह अफ़ज़ा है, टैंग है, और जितने भी शरबत है, आई टेल देम प्लीज स्ट्रिक्टली अवॉइड देम। You might as well take food which will fill your stomach rather than taking a sugary drink, जो कि immediately आपकी शुगर को इंक्रीज कर देगा। उसके साथ में आप लीन प्रोटीन लें। तो आप चिकन, मतलब आप नॉनवेज, ग्रिल्ड चिकन है, जो चना बनता है, वो सब अच्छा है। सो हलीम इज अ फुल मील। जो हलीम खाते हैं हैदराबाद में, इट्स अ कंप्लीट मील, इट इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स विद चिकन। सो इट्स अ कंप्लीट मील। अगर जो हम कबाब बनाते हैं, अगर वो कबाब हम ग्रिल्ड वाले बनाएं, ओके, और इफ यू आर हैविंग अ तंदूरी चिकन, देन दैट इज अ लीन प्रोटीन दैट यू आर ईटिंग, तो उसमें कोई गलत नहीं है वो खाना। बट इट इज द डीप फ्राइड भजियाज एंड पकोड़ाज विच आई टेल द पेशेंट दैट डू नॉट हैव देम, ओके। एंड उसके साथ में नट्स आर अगेन गुड फॉर इवनिंग, एंड बहुत सारा पानी पियो। सो वन थिंग विच आई स्ट्रिक्टली टेल देम टू अवॉइड इज डीप फ्राइड, एंड आई टेल देम नॉट टू हैव शुगरी ड्रिंक्स। आपको मीठे का मन है तो फ्रूट्स आर द बेस्ट सोर्स, एंड वो इमीडिएट एनर्जी भी देता है, एंड इट हैज द वाटर कंटेंट। तो वो आपको जो प्यास लगी रहती है कि उस टाइम पे बस मुझे कुछ पानी वाला चाहिए, सो आई थिंक मुझे लगता है सबके दस्तर पे एक वाटरमेलन तो होता ही है ना, बिना वाटरमेलन के तो इफ्तारी नहीं होती। सो पीपल लाइक टू हैव दोज काइंड्स ऑफ वाटरी फ्रूट्स, वो आप ले सकते हैं। बस प्रोसेस्ड कार्ब्स, जो रेडी टू ईट आइटम्स होती है, जो पैक्ड फूड होता है, जो उन सबको आप कंप्लीटली अवॉइड करें। मैदे वाली चीजें अवॉइड करें ताकि हमारी शुगर स्पाइक्स बढ़े नहीं। ऑल्सो आई टेल द पेशेंट दैट इट इज एडवाइजेबल दैट अपना पूरा खाना आप इफ्तारी में ही कर लो। सो आपने डेट्स खाया, आपने और उसके बाद आप नमाज पढ़ लो, और उसके बाद आप अपना पूरा खाना खा लो। सो उससे क्या होता है ना कि वो जो 2 और 3 मील ले रहा है,
One is at iftar, then the second meal he'll have after tarawih, then there will be a dessert at bedtime. वो सब काफी avoid हो जाता है. So then he can take this and he can take a small snack after tarawih, सोने से पहले, ताकि then he can then he is also hungry. सवेरे सहरी तक अच्छी भूख भी लगती है और तब खाया भी जाता है. लोग इफ्तार में इतना ज्यादा खा लेते हैं कि फिर सहरी is like a small meal, और sometimes they have missed the meal also. तो उससे सब फिर प्रॉब्लम हो जाती है. मैंगो के ताल्लुक से आपका क्या कमेंट है? मैंगो, बहुत सारे लोग पूछते हैं आम के बारे में, हाँ, देखते हैं या नहीं तो अभी रमजान में तो मैं उनको मैंगो देती हूँ सहरी में. शहरी में? हाँ, सहरी में, because anyways the quantity of food calorie wise is lesser in sehri than in iftari. Okay, so and it's a high glycemic load fruit also. तो Yeah. जब वो सवेरे खा रहे होते हैं तो उनका वो शुगर लो नहीं होती है उनकी, वो अच्छे से मेंटेन कर जाते हैं. आम से मुश्किल ये होती है कि थोड़ा खाने में लोग जरा हिचकिचाते हैं, मतलब आम मतलब आम वहाँ प्रॉब्लम रहती है. हाँ, तो जैसे हाँ. आपने बताया स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल बॉल कट फ्रूट्स, दैट वुड बी You बेटर. can have one small mango in sehri. एंड वन Okay. मोर थिंग, आपने क्वांटिटी के बारे में बताया क्या होना चाहिए. हम्म. टाइमिंग भी तो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अभी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सिटीज में मिडनाइट सहरी का भी चलन चल रहा है. मतलब मोस्ट ऑफ द होटल्स रेस्टोरेंट देर ऑफरिंग 2 हम्म. AM सहरी. बहुत हम्म. सारे लोग 2 बजे जाकर के होटल्स में बैठ रहे हैं और 2 से 3 के बीच में दे आर हैविंग सहरी अगेंस्ट द गाइडलाइंस. मतलब मोस्टली गाइडलाइंस से कि मतलब यू शुड हैव सुहूर क्लोज टू द सनराइज एंड देन इफ्तारी एज क्लोज टू सनसेट एज पॉसिबल. इसके बारे में डॉक्टर हामिद आपका क्या कहना है? जैसे कि आपने शुरू में कहा ना कि रमजान इज जस्ट नॉट अबाउट Fasting and spiritual, feasting. हाँ, fasting and feasting. It is something which is very much important for our spiritual, upliftment as well as our physical upliftment. तो उस सिचुएशन में अगर कोई 2 बजे अफ्तारी सहरी खा के सो जा रहा है तो देन यू आर गोइंग टू मिस योर तहज्जुद, यू आर गोइंग टू मिस योर फजर प्रेयर. तो आपने एक चीज तो अडॉप्ट की बट दूसरी चीज छोड़ दी. दैट इज प्रेटी बैड काइंड ऑफ थिंग टू डू इफ यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअली. तो हमें उनसे ये कहना चाहिए, एक तो आपको फजर की नमाज नहीं छोड़नी है, तो उसमें अगर आप फजर की नमाज पढ़ेंगे तो फिर उसमें आप यू शुड डू सेहरी एज लेट एज पॉसिबल. And that is also the teaching of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, that it should be taken during the last, you can say, quarter or whatever, how you divide the night time. It should be taken at the last moment, and iftar should be done as early as possible, and sehri should be done as late as possible according to the guidelines. So we should, this is something which needs tackling at our level and more at the level of community. And we should also involve other players, for example those religious scholars and those imams of the mosque. They should also, I think, it needs some kind of social kind of thing, that this is something which is not good, which is definitely bad, and we should not promote this. It is not good for health also, ना डॉक्टर Yeah. यूसुफ? इट इज, बट मतलब वो एक मतलब एक ट्रेंड बन चुका है बिकॉज Hmm. इट्स हाँ, सोशल मीडिया ना. तो यू गेट हाँ, अपडेट्स कि भाई ये रेस्टोरेंट में यू हैव दिस मेनू, एंड हाँ. स्पेशली यंगस्टर्स ज्यादा Yes. कर रहे हैं इसको. तो इन द लॉन्ग रन आई थिंक ये ओबेसिटी का भी और यंग डायबिटिक्स, बिकॉज वी आर गेटिंग लॉट ऑफ यंग डायबिटिक्स. तो एक Yes. रीजन ये भी होता है ना कि 30 दिन अगर आपने 2 बजे रात को खाना खा लिया, चांसेस आर के एडोलेसेंट डायबिटीज का ज्यादा जो है प्रिवेलेंस हो जाए. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. कमिंग टू डॉक्टर ओवेस, नेक्स्ट डाइट के बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ. तो रमजान में किस टाइप की एक्सरसाइज और कब आप एडवाइस करेंगे, किस वक्त? तो बेस्ट टाइम ऑफ एक्सरसाइज ड्यूरिंग रमजान इज कि जिस टाइम हाइपोग्लाइसीमिया का चांस लेस है और डिहाइड्रेशन का चांस लेस है, विच इज आइडियली आफ्टर इफ्तार, 1 to 2 hours आफ्टर इफ्तार. ये गाइडलाइंस भी कहती है हमें. सो इफ्तार के 1 या 2 घंटे के बाद आप मॉडरेट एक्टिविटी कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं. इनफैक्ट उससे आपकी ब्लड शुगर भी रेगुलेट हो जाएगी. तो इंटेंस एक्सरसाइज, हैवी वर्कआउट आपको ड्यूरिंग फास्टिंग आवर्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि उससे रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया बढ़ता है, डिहाइड्रेशन बढ़ सकती है. और सबसे बेस्ट चीज जो है पोस्ट इफ्तार एक्टिविटी जो है तरावी नमाज.
तो उसमें जो 20 रकात नमाज होती है, तो उसमें वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी मानी जाती है। इनफैक्ट एक स्टडी हुई थी, उन्होंने दो ग्रुप्स देखे थे, जिन्होंने तरावी की नमाज पढ़ी थी और जिन्होंने नहीं पढ़ी थी। उनका जो HbA1c, मीन HbA1c, वो भी कम हो चुका था। सो तरावी इज इन इटसेल्फ फिजिकल एक्टिविटी जो हर कोई करता है। तो सिर्फ यही ख्याल रखना, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, उनको फास्टिंग आवर्स में दे शुड नॉट डू फिजिकल एक्टिविटी। अगर उनको फास्टिंग आवर्स में करना भी है तो आइडियली बिफोर इफ्तार, 1 घंटा पहले, ताकि अगर लो शुगर हो या डिहाइड्रेशन हो तो इमिजिएटली जब इफ्तार का टाइम क्लोज है तो वो अपना रोजा उस टाइम पे खोल सकते हैं। सो एनी एक्टिविटी, लाइट वॉक, योगा करें आप, या लाइट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, लाइट वॉक कर सकते हैं, बट आइडियली पोस्ट इफ्तार या बिफोर 1 आवर बिफोर इफ्तार। बिल्कुल। डॉक्टर उखैर, स्पेशली जो ओबीज हैं, खासतौर पे लेडीज, दे वांट टू लूज वेट ड्यूरिंग रमजान। अक्सर होता यह है कि ऑन द कॉन्ट्री दे पुट ऑन। गेन वेट। बहुत सारा डेटा ये बता रहा है कि रमजान के बाद 7 to 8 kgs पीपल आर पुटिंग अप। सर ये 2 AM इफ्तार, 2 AM सहरी की वजह से ही हो रहा है। तो मतलब ये इस गिविंग ए वेरी रॉन्ग मैसेज ना। तो मंथ ऑफ यस। फास्टिंग इज बिकमिंग मंथ ऑफ फीस्टिंग। तो स्पेशली वेट लॉस के लिए हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं? So as any other weight loss, the basic remains the same. You have to have portion control. बिना कैलोरी डेफिसिट के आपका वेट लॉस नहीं होता है। लोगों को लगता है कि अरे ये 2 ही बार खाना खा रहे हैं तो कैलोरी डेफिसिट हो जाएगा, बट अगर आपको रमजान में वेट लॉस करना है तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट योर कैलोरीज, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू इंक्रीज द कैलोरीज इन रमजान। सो द पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ्तार के बाद आप बहुत ज्यादा बिंज नहीं करें, आप अपनी कैलोरीज को कम रखें, आप खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लें, फाइबर लें, और कार्ब्स का इंटेक कम करेंगे। आप जब प्रोटीन बढ़ाएंगे तब आप सो अभी जब मैं ओवरवेट वुमेन की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायबिटिक पेशेंट्स। तो हम वेट लॉस के लिए जब बोल रहे हैं तो वी आर नॉट वरीड कि इनकी शुगर लो हो जाएगी और इनका हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। सो उनको अगर वेट लॉस करना है तो वो प्रोटीन का इंटेक बढ़ाए और कार्ब्स का इंटेक कम कर दे, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, अवॉइड द शुगरी ड्रिंक्स, अवॉइड मीठा बंद कर दे, और एक्सरसाइज, जैसे डॉक्टर ओवैस ने बोला कि आफ्टर इफ्तार दे शुड एक्सरसाइज, दे शुड डू सम काइंड ऑफ लाइट एक्सरसाइजेस ताकि उनका वेट लॉस हो जाए। वेट लॉस कर सकते हैं तो उनको लगेगा कि बड़ा सा सादा सा रमजान हमने फॉलो किया तो वेट लॉस हो जाएगा। ये बड़ी सी इफ्तारी और बड़ी सी सहरी के साथ वेट लॉस नहीं हो पाता। तो अगर आइडियल डाइट फॉलो करते हैं रमजान में, विच हाँ। शुड बी डूइंग एक्चुअली, और यस। उसके साथ अगर हम GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है जैसे सेमाग्लुटाइड है, प्लस जो कन्वेंशनल जो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स है जैसे ओर्लिस्टैट है, ये अगर हम एडिशनली हम देते हैं तो क्या ये बेनिफिट करेगा इन पेशेंट्स को? सेमाग्लुटाइड विल गिव यू वेट लॉस डेफिनेटली। रमजान में कुछ एडिशनल है इसमें, ऐसा कुछ डॉक्टर ऑयली हम? स्टार्ट तो इट इज, आई थिंक ऑयली स्टार्ट वुड बी आइडियल इन दिस कंडीशन बिकॉज हम ऑयली फूड खा रहे हैं। सो ऑयली स्टार्ट, इफ यू डू नॉट टेक फैटी फूड तो उसका वेट लॉस कम होता है। अगर आप फैटी फूड ले रहे हो तो ही ऑयली स्टार्ट के साथ आपको वेट लॉस दिखेगा, ऐसा है। सो ऑयली स्टार्ट वुड बी गुड, बट सो दिस कैन बी देयर टू हेल्प द पेशेंट, बट हम रोजे वेट लॉस करने के लिए नहीं कर रहे हैं। और some वो people come माइंडसेट to you with पेशेंट the, का I mean, चेंज करना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे पास पूरे 11 महीने भी है, rather than being strict on that in this 1 month where we are worried कि तुम्हें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो जाए, तुम चक्कर से गिर ना जाओ और बाकी तकलीफें ना हो जाए आपको। अच्छा, कोई अगर नॉन डायबिटिक है और ओबीज है and they are हाँ। टेलिंग कि भाई हम रमजान में वी आर गोइंग टू कट डाउन ऑन डाइट, हम अच्छे से यस यस, करेंगे, तो इट्स उन अ लोगों गुड के लिए? थिंग। वो पेशेंट को ना मोटिवेशन मिल जाता है, एक तरह का जो IF इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो प्रचलन चला है, Exactly, ओके, एवरीबडी exactly. वांट्स टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, इट्स इजीली इट इज, तो ये उसके लिए अच्छा हो जाता है कि वो 2 मील ले रहा है। बट वो मील पे कंट्रोल करना ही उसके लिए सबसे बड़ा मुश्किल है। बट इफ ही इज एबल टू डू दैट देन ही विल डेफिनेटली लूज वेट। डॉक्टर हामिद, एक और स्पेशल ग्रुप है एथलीट्स। भी हम्म। हम रिसेंटली मोहम्मद शामी का जो है वीडियो आया, वो अभी रिसेंट जो क्रिकेट मैच है वो पानी पी रहे थे बॉटल से, तो उस पर भी एक कंट्रोवर्सी हुई। अब सुना ही होगा ना आपने? जी जी जी, देखा हमने। जी। तो ये जो एथलीट्स हैं या फिर रेगुलर जिम गोवर्स हैं, इन लोगों के लिए हम क्या मतलब
इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग रमजान के भी वो रिलैक्सिंग भी रहे, प्लस उनका मसल मास मेंटेन भी रहे और स्टेमिना भी अच्छा इंप्रूव, इसके लिए क्या करें? हाँ, एक तो मोहम्मद शमी वाली कंट्रोवर्सी तो मतलब आई मीन आई दीज आर मैन्युफैक्चर्ड काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। दिस इज, अगर स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें, दिस इज समथिंग विच इज बिटवीन द ऑलमाइटी एंड द पर्सन, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए। ही वॉज ट्रैवलिंग ऑल्सो, तो सफ़र में रोज़ा माफ़ है वैसे, आई मीन उसको क़ज़ा की जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई मीन वो तो एक फेस वैल्यू पे आ गया। लेकिन जो रेगुलर, फॉर एग्जांपल यस्टरडे ओनली आई गॉट अ वीडियो कि उसमें वो दिखा रहे थे कि बहुत सारे जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, एंड फुटबॉल इज़ अ वेरी हाई इंटेंसिटी गेम। उसमें एक का था कि ही हैज़ रैन अबाउट 10 किलोमीटर्स ड्यूरिंग दैट मैच एंड ही वाज फास्टिंग। दिस इज समथिंग विच इज़ इवॉल्विंग, जिसके लिए कि अभी हमारे पास उतने अच्छे एविडेंस नहीं है। बिकॉज यू नो मेंटल ट्रेनिंग जितनी ज़्यादा होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें मुश्किल लगती हैं, लेकिन वी कैन ओवरकम दैट। तो अभी बहुत अच्छा कोई एविडेंस नहीं है कि जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है उसको कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन उसमें जो बेसिक्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोफेशनल ऐसी चीज़ नहीं है, अगर किसी को जिम ही जाना है तो उसके लिए भाई अफ्तार से लेके सहरी तक का टाइम है, वो किसी भी वक्त जा सकता है, उसमें कर सकता है अपने आप को। हैवी एक्सरसाइज जो है वैसे अफ्तार से पहले उसको हम मना करते हैं कि उस वक्त हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस, डिहाइड्रेशन के चांसेस। आई वॉज गोइंग थ्रू IDF डार, तो उसमें भी ये लिखा था वी नीड मोर अमाउंट ऑफ डेटा, स्पेशली इफ टॉक अबाउट टाइप 1 डायबिटीज में एक्सरसाइज के लिए। So this is something which is evolving and for which we need more evidence. But certain thing is that moderate exercise जो हम कहते हैं, जैसे डॉक्टर वैस ने very legitimately has explained कि BC का तरावी is equal to moderate exercise. तो moderate exercise जो लोग करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तरावी is the change for that. And I have seen some people, जब मैं मस्जिद से निकलता हूँ after this सहरी, many people go for a short walk for 15 to 20 minutes. That is also a very good time कि उस वक्त मौसम भी अच्छा होता है। और हमारे जहाँ ओवर क्राउडेड इलाके हैं अलीगढ़ जैसे, जहाँ वैसे दिन में सड़क पे चलना मुश्किल है, तो दैट आल्सो गिव्स यू गुड टाइम कि आप सुकून से एंड सेफली यू कैन वॉक। तो शहरी के बाद भी जस्ट इमीडिएटली आफ्टर शहरी, दैट इज आल्सो गुड टाइम, बिकॉज उसमें गर्मी ज़्यादा नहीं होती है, और वैसे फिजिकल भी हार्म के चांसेस कम होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह सारी चीज़ें हैं। और अफ्तार से पहले थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए एक्सर्शन, क्योंकि वो that can lead to problem of hypoglycemia and dehydration. But we need more evidence and more structured kind of things to have some very expert or good evidence based kind of claim. वेरी क्लियर। कुछ स्टडीज इसमें ये भी हैं कि अगर कोई रेगुलर यानी एक्सरसाइज करने वाले हैं हाई इंटेंसिटी, तो इफ्तार से पहले उनके लिए एक अच्छा वक्त है, बिकॉज दे आर यूज टू दैट। because just half an hour before iftar they can do for the the high intensity workout, immediately they will have a calorie intake via iftar। तो ये भी कुछ studies हैं, because their body is accustomed, या फिर you can say adjust हो चुकी होती है बॉडी। तो हाई इंटेंसिटी अगर रेगुलर कर रहे हैं तो प्री इफ्तार इट इज एडवाइजेबल। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? दैट विल ऑल्सो डिपेंड, उसमें भी फॉर एग्जांपल अगर अभी जैसे मार्च का रोज़ा है, दैट्स नॉट अ बिग इशू कि इसमें टेम्परेचर्स उतने ज़्यादा नहीं है। बट इफ सेम थिंग यू अप्लाई इन द मे और मंथ ऑफ जून में द पेशेंट पर्सन इज ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड, then I will still have my reservations कि डिहाइड्रेशन के चांसेस जब ज़्यादा हैं एंड पेशेंट इज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, तो वैसी सिचुएशन में इफ्तार से पहले हाँ, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग इन श्रीनगर, या अभी और रोज़े जो है फरवरी में जनवरी में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली we need to individualize that kind of teaching, because Also, uh, in our country the 12-13 घंटे के रोजे हैं, लेकिन दुनिया में सब जगह पे इतने नहीं हैं जहाँ लंबे समय के भी रोजे, even if it is cold weather, but if the hours are long, then the chances of dehydration is more. बिल्कुल, कई So जगह in 20 those, घंटे के भी है, हाँ नॉर्मल इसके। हाँ, तो वहां पर हम अवॉइड करेंगे ना उनको, मतलब अनलेस यू आर प्रेइंग प्रोफेशनली एंड इट इज डिफरेंट देन। बट अगर आप शौकिया कर रहे हो, तो डॉक्टर हामिद ने बोला ना, इफ्तार से सूर तक का टाइम है, आप अपने शौक पूरे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोथ डॉक्टर रुकैया और डॉक्टर अवैस को जाएगा कि एआई और जो डिजिटल एप्स है ये कितने यूजफुल रहेंगे लोगों को, ड्यूरिंग रमजान मॉनिटरिंग के लिए? आई एम प्रो इट, टोटली।
तो लोग मुझे ऐसा लगता है कि एक सीजीएम बहुत ज्यादा पेशेंट को कॉन्फिडेंस दे देता है रोजा रखने के लिए भी, कि उसे जो वो डर रहता है कि मेरी शुगर लो होने वाली है, वो काफी हद तक कम हो जाती है, बिकॉज ही इज इन कंट्रोल ऑफ लुकिंग एट हिज ब्लड शुगर ऑल द टाइम। तो कुछ पेशेंट्स अभी मेरे पास सिर्फ सीजीएम इसीलिए लगा के गए हैं कि मैडम हम रोजा रखना चाहते हैं तो हम ये लगा के रखते हैं, ताकि ना हमें पता हो कि हम हाउ आर वी डूइंग, मतलब वो डर जो उनमें रहता है और जो उनकी फैमिली में भी डर रहता है, द केयर टेकर्स आर ऑल्सो वरीड कि अरे नहीं मम्मी को रोजा नहीं रखाते, अचानक तबीयत खराब हो जाएगी। तो एक जन अगर बीमार पड़ता है तो घर में सबको तकलीफ हो जाती है। सो बाय पुटिंग अ सीजीएम एवरीबडी इज वेरी कंफर्टेबल कि इनको रोजा रखाना है कि रोजा नहीं रखाना है। कभी कोई बड़े लोग होते हैं वो ऑल्टरनेट डे करते हैं, कोई 2 दिन में 3 दिन में एक बार कर रहे होते हैं, सो इट दे आर वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट। एंड ऑल्सो इफ द शुगर्स आर हाई एंड दे स्टिल इंसिस्ट, हाई रिस्क वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हम मना करते हैं एक्चुअली, बट उनको लगता है नहीं मैं रोजा रखूंगा तो मेरी शुगर कम हो जाएगी, मैडम दिन भर खाएंगे ही नहीं, तो दे फील दैट्स अ वे ऑफ कंट्रोलिंग देयर ब्लड शुगर्स। So even in those patients when they put CGM, they actually see the trend कि जब मैं खा रहा हूं तो भी मेरी शुगर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। So I totally feel that AI, the apps, they really help you to track about how your blood sugar is. टाइप 1 पेशेंट है, अगर वो क्लोज लूप सिस्टम पे है तो इट इज अमेजिंग कि उसे उसे कभी भी उसकी शुगर लो होने की हमें चिंता नहीं होती है। So he is able to, he feels in control of his things. जैसे आपने बताया, अगर कोई टाइप 1 डायबिटिक इंसुलिन पंप पे है, Hmm. लेटेस्ट जो है एआई लॉजिस्टिक्स यूज कर रहे हैं, Hmm. it becomes really easy for them, but not Yes. everyone can afford that. तो कुछ Yes. Yes. नॉन प्रिक एप्स भी हैं जहाँ स्किन इंटरफेस के जरिए विदाउट प्रिक हाँ. दे आर मेजरिंग शुगर। तो इसके बारे में आपका क्या क्या राय है डॉक्टर अवेस? यानी विदाउट प्रिक, जस्ट यूजिंग Yeah. स्किन इंटरफेस। See, I don't know. See, I am not aware of those devices और वो validated है, whether they are validated, I don't know how accurate those apps are. But answering your this question that the role of AI and apps, see, देखिए CGM जो डॉक्टर रुकया ने कहा कि it's a great thing, but I don't know many patients जो CGM पे है। इनफैक्ट आई मतलब मेरे फॉलो अप पे तो एक भी पेशेंट नहीं है जो CGM यूज कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एफोर्डेबिलिटी। सो और पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी कि वो ऐप देखे या अपना ब्लड शुगर, लाइक कुछ एप्स तो लाइक आपका ग्लूकोमीटर कनेक्ट करती है, सो यू कैन ट्रैक योर शुगर्स थ्रू दैट ऐप ऑल्सो। मेनी आर नॉट इवन यूजिंग दैट। मेनी पीपल जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, in fact giving them all this education, nobody is checking blood sugars. I'm talking about the ground reality. Hmm. कोई Hmm. चेक ही नहीं करता है शुगर। ठीक है, ऐसे ही डॉक्टर साहब मैं ठीक रहा। अच्छा, जिनको हम एडवाइस भी करते हैं कि आप शुड रोजा ना रखिए, तो दे आर द वन जिन्होंने रोजा रखा होता है। और जिनको रखना है वो डॉक्टर की एडवाइस लेते हैं कि डॉक्टर हमें ये बोले कि आप रोजा ना रखें। सो ऐसी चीजें भी होती है, बट डेफिनेटली अगर एप्स का यूज किया जाए, पर्टिकुलरली कार्ब काउंटिंग में, जो टाइप 1 डायबिटीज में, इनफैक्ट अब एआई से आप फोटोग्राफ भी ले सकते हैं अपनी प्लेट का, and that will tell you the amount of calories and the amount of carbohydrate exchanges. It's a good thing, but the only question is कि हम कितने लोगों को वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन प्रैक्टिकलिटी। तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा इसमें लिमिटेड ही है, बट हमने थोड़ा टाइप 1 डायबिटीज में लाइक थोड़ा सा काम किया है कि जब हमने यहाँ पे फोटोग्राफिक कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग रिसोर्सेज बनाए लोगों को जस्ट समझाने के लिए कि एक्चुअली व्हाट इज अ कार्बोहाइड्रेट। सो हम थोड़ा अभी प्रिमिटिव स्टेज पे ही है, बट देयर इज अ ग्रेट स्कोप फॉर एआई इन द फ्यूचर, नो डाउट। सो डॉक्टर यूसुफ, आई हैव वन पेशेंट, एक 7 साल का बच्चा है, उसके माँ बाप इतने मोटिवेटेड है कि मतलब वो, उसके टाइप 1 हुआ है तो उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, ताकि उसके बेटे की इंसुलिन कम हो जाए या उसके प्रिक्स कम हो जाए या कुछ भी। सो दे एक्चुअली गॉट द स्किन इंटरफेस ग्लूकोमीटर, एंड तब मैंने पहली बार देखा था कि वो स्किन इंटरफेस वाला ग्लूकोमीटर है। ही सेड मैडम अपने मल्टीपल टाइम्स हमने हमारे ग्लूकोमीटर के साथ चेक करके देखा है और क्या ये नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है। सो व्हाट दे हैव कम टू, आई एम टेलिंग यू, ये पेशेंट का फीडबैक था मुझे कि बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा लो हम इस पे रिलाई नहीं करते हैं, ओके, लेकिन जब हमें सिर्फ उसका ट्रेंड देखना है तो हम इस पे रिलाई करते हैं। फाइन फाइन। ओके, तो बिकॉज कई लोग प्री रमजान ये पूछ रहे थे, दे आर रिलक्टेंट टू प्रिक,
तो देवर आस्किंग कि भाई हम ये यूज कर सकते हैं या हाँ, तो नहीं। वो डॉक्टर उवैस ने पहले ही बोल दिया ना, पेशेंट को समझाना बहुत जरूरी है कि प्रिक करने से रोजा नहीं टूटता है, तो कमिंग टू वो बहुत डॉक्टर जरूरी है। हामिद। डॉक्टर हामिद, कैन यू हियर मी? You are हाँ, audible. या तो अभी सीकेडी पेशेंट्स के ऊपर आते हैं। अभी सीकेडी पेशेंट्स में विथ डायबिटीज कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस हैं, स्पेशली दे आर विथ हाइपरटेंशन आल्सो कोमॉर्बिड, तो उसमें क्या हम स्पेशल प्रिकॉशंस ले सकते हैं? सीकेडी पेशेंट भी आप चूंकि एक बहुत ही वाइड वैरायटी है, ग्रेड 1 टू ग्रेड 5। तो और डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, दोज हु आर डायलिसिस पे हैं बट दे आर स्टेबल, दोज हु आर ऑन डायलिसिस बट दे आर अनस्टेबल, सम पीपल हैव बीन एडवाइज्ड डायलिसिस बट स्टिल नॉट अंडरगॉन फॉर दिस। तो एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है सीकेडी पेशेंट्स का। रिसेंटली आई वाज इन वन ऑफ द मीटिंग्स वेयर दे आर वी आर ट्राइंग टू फ्रेम गाइडलाइंस फॉर पेशेंट्स ऑफ डायबिटिक सीकेडी, उनको रोजे रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आई कि ड्यूरेशन ऑफ रमज़ान कितना होगा, और उनका हाइपरटेंशन कैसा है, और पोटेशियम उनका लेटली एलिवेटेड तो नहीं हुआ था, रिसेंटली हॉस्पिटलाइजेशन की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई पल्मोनरी एडिमा वगैरह के एपिसोड्स तो नहीं हुए थे। तो उसमें वही है कि एंड वी नो दैट सीकेडी पेशेंट दे आर हैविंग मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग hypoglycemia. So they do need more, you can say, frequent monitoring, and they do have more risk of development of different kind of complication, renal as well as complication related to diabetes. तो those up to stage 3 for example, अगर कोई patient है और stable है तो definitely he can go ahead with the fast, but stage 4 and 5 ideally they should not fast, and if they are insisting on fasting, then they should have all those kind of facilities. For example, it should be accessible, and they should understand what are the problems which can happen, how we can monitor all those kind of things. तो मुझे लगता है कि अभी बट वी नीड मोर काइंड ऑफ एविडेंस इन दिस सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स की इनको कैसे करना है सारी चीज़ें, बिकॉज फ्लूइड बैलेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन पेशेंट्स ऑफ सीकेडी। ज़्यादा लेने में प्रॉब्लम है, कम लेने में प्रॉब्लम है। So we need to be very careful, and we need to individualize our treatment plan according to their risk. And those who are quite stable for during last 6 months, and their potassium is normal, and creatine has not progressed in during that kind of time. मुझे लगता है ये भी एक अच्छा मौका होता है जब हम इन चीज़ों को यूटिलाइज कर लें कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट हमारा प्री रमजान विजिट पे आ रहा था, तो उसकी क्रिएटिनिन, यूरिन एल्बुमिन, ये सारी चीज़ें चेक कर लें। तो आई थिंक आप मिड ऐसे किया रमजान भी जाएगा। उसकी चेक कराएंगे डॉक्टर हामिद? आफ्टर फ्यू फास्ट विल टेल हिम, आफ्टर वीक ऑफ फास्टिंग आप वापस अपना क्रिएटिनिन और यूरिया चेक कर लीजिए। वुड यू टेल द पेशेंट टू फॉलो अप? किया जा सकता है, उसमें वही मैंने बताया, अभी वी एट दिस मोमेंट वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू से समथिंग डेफिनेटली, बट अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या किसी पेशेंट को रोजे रखने की वजह से प्रॉब्लम हो गई फॉर एग्जांपल, एंड ही हैड टू ब्रेक हिज फास्ट, तो डेफिनेटली इन पेशेंट्स को तो हम कह सकते हैं कि आप अपना इलेक्ट्रोलाइट्स और यूरिया क्रिएटिनिन करा ले दोबारा, उसमें कोई हर्ज नहीं है आई थिंक। मतलब प्री रीनल एजोटीमिया का थोड़ा ये रहता है ना, इफ द पेशेंट इज एट अ बॉर्डर लाइन जीएफआर। वही इफ द मतलब जीएफआर वाज डिहाइड्रेशन का ज्यादा मुझे तो टेंशन होती है विद सीकेडी रादर देन हाइपोग्लाइसीमिया, बिकॉज हाँ। वो हाइपोग्लाइसीमिया तो वो मेंटेन हो जाता है, योर बॉडी इज ऑल्सो वर्किंग, ग्लूकागॉन भी है, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया समहाउ मुझे इतना नहीं दिखता है जितना पेशेंट वरी ऑफ। फ्रैंकली, मतलब आप लोग सबका क्या एक्सपीरियंस है, सच में पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया होता है क्या? बहुत कम पेशेंट ऐसे आते हैं कि शुगर लो हो गई। हाई शुगर्स के मिलते हैं रमजान में जिनकी शुगर बढ़ गई है, बट हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट्स बहुत कम होते हैं। बट रीनल पेशेंट्स, आई एम ऑलवेज वरीड कि यार 12 अभी तो फिर भी द सीजन इज बेटर, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है तो पेशेंट रख पा रहे हैं। बट यही जब मई जून होता है तो वो डिहाइड्रेशन और ज्यादा सेट इन हो जाता है, एंड देन दैट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। इफ द पेशेंट्स क्रिएटिनिन इज 2.5, यू डोंट नो कि इसकी इलेक्ट्रोलाइट्स कभी इधर के उधर हो जाएंगे। मतलब एक वन सेरी मिस्ड एंड थिंग्स आर इन अ प्रॉब्लम। नहीं, सीकेडी में डेफिनेटली जो जनरल कॉम्प्लिकेशंस है उसका रिस्क और बढ़ेगा, जैसे ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी और बढ़ेगी, तो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, स्पेशली स्टेज 4 या डायलिसिस पे है
और डेफिनेटली डिहाइड्रेशन का रिस्क भी कंपेयर टू अदर ग्रुप ऑफ पेशेंट ज़्यादा ही रहेगा। तो मतलब कॉशन ज़्यादा इसमें लेना है हाँ, अपने। एंड वी नीड टू हैव मोर एविडेंस, मतलब हमें एज ए डॉक्टर, एज ए रिसर्चर्स, वी नीड टू इवॉल्व आवर आई मीन एविडेंस, सो दैट वी कैन गिव evidence based advices to our patients rather than opinions which we have at this moment. Right, I So we agree. have last 10 minutes remaining, and we have discussed, I think, in detail various aspects, starting from the categorization of patients, then the most common complications. Then we discussed about the diet, exercise, and different medication modification aspect. Special population को भी हमने discuss किया, starting from GDM से लेकर के CKD तक, और जनरल पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए, कल्चरल एस्पेक्ट्स। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन हमको मिला है, बोथ पेशेंट्स एंड द डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल द थ्री एक्सपर्ट पैनलिस्ट। मैं वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का, डॉक्टर हामिद अशरफ, डॉक्टर रुखैया शेख और डॉक्टर पीरजादा, फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। एंड आई हैंड ओवर द माइक टू डॉक्टर हितेश। Yeah. And now we'll go for a question answer session. First of all, I would like to ask Dr. Oves regarding type 1. When we say that correction bolus is, when we teach our patient correction bolus, is it for good or is for bad? And sometimes I see that the patient do over corrections, they overeat, and they gain obesity. That results into another type of thing, which is known as insulin resistance. So is it better, it is in a good way or a bad way to teach our patients of type 1 insulin correction rules? Dr. So Oves. is it in context to fasting or generally you are asking? Generally, even Generally. in fasting also, if you Okay. say. Okay. See, I think the concept of correction bolus is not well known to most of the people living with type 1 diabetes. Like I used to cater around 500 kids with type 1 diabetes. Dr. Hamid knows it when he was in SKIMS. So most of them would be on basal bolus on fixed dose regimes. And I think correction bolus is the integral part of type 1 diabetes management, which most of the लोग करते ही नहीं है. Like they run high, they wait for their main meal and take insulin, and उस time खाते भी है. So I think जो आपका question है उससे insulin resistance बढ़ेगा, but I would say in my experience we started using correction boluses by using swim carts. That was a concept which I brought from John Hunter Children's Hospital, Newcastle, where I was Alan Rash Fellow. So we brought that concept to our population and we used those cards. So उन cards में concept of correction bolus भी था. Like if your sugars are high, आपने 2-3 घंटा हुआ है, still you are running high and you give a correction bolus. And it actually helped them in reducing their HbA1c. Main funda यही है कि to reduce their mean HbA1c to prevent the complications. So I am I completely support that we should, in type 1 diabetes, the first thing you should teach is carbohydrate counting and plus how to give a correction bolus. It's very important. Okay. We have this question from Sapor Umirwani. He wanted to know about glycemic index and low GI food for diabetic patients, especially in Ramadan. Suggestions, anyone? So I'll go ahead with that. Dr. Ravia has already told, and she is the best person to explain. Yeah. Yeah. So for low GI and high GI, तो अगर हम कार्ब्स बोले तो व्हाइट राइस इज योर हाई जीआई, बट वर्सेस अगर आप होल व्हीट ले रहे हैं, ओट्स ले रहे हैं, किनवा ले रहे हैं, तो वो लो जीआई हो गया। ओके, प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप चिकन ले रहे हैं, अंडा ले रहे हैं, चना खा रहे हैं, ग्रीक योगर्ट खा रहे हैं, तो वो लो जीआई हो गया। बट वहीं आप रेडीमेड जो रेडी टू ईट प्रोसेस्ड चिकन आता है या रेडी टू ईट कबाब्स आती है, वो जो रेडीमेड आपकी मिलती है, अगर आप वो ले रहे हैं, सो देन दैट बिकम्स योर दैट इज हाई जीआई, तो उसको आपको अवॉइड करना है। फ्रूट्स अगर हम बोले, सो वाटरमेलन इज अ हाई जीआई, सो आइडियली वाटरमेलन नहीं लेना चाहिए, उससे बेटर है कि आप एप्पल एंड पेयर्स ले, सो दे आर लो जीआई फ्रूट्स टू बी टेकन, एंड अवॉइड वाटरमेलन एंड बनानास इन रमजान। वेजिटेबल्स में जो वाटर बेस्ड वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, तो स्पिनिच इज गुड, या कुकम्बर्स आर गुड, बेल पेपर्स आर गुड, बट वहीं पे जो आलू है वो सही नहीं है। ओके, यू टेक इन टर्म्स ऑफ योर ड्रिंक्स, आई वुड से कि आप शरबत और शुगरी फूड नहीं ले, बट आप पानी ले, आप हर्बल टीज ले, आप आइस टी ले,
unsweetened मतलब लस्सी unsweetened लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं. So those become your low GI. Again आपको snack लेना है. So hummus is very good. You know, instead of taking hummus with crackers, you can take hummus with vegetable sticks instead of taking fried snacks and sweets. तो दैट बिकम्स योर लो मतलब हर एक चीज का जो फ्राइड वर्जन है आप अगर उसका एयर फ्राई वर्जन कर लो या आप उसका ग्रिल्ड वर्जन कर लो तो यू आर रिड्यूसिंग द ग्लाइसेमिक लोड ऑफ इट. एंड अगर वो द कवरिंग इज इन मैदा एंड इफ यू चेंज द कवरिंग ऑफ इट देन यू कैन रिड्यूस मेक इट टू अ लो जीआई फूड. ऐसे है. Thank you, Dr. Uday. There is one more question of Dr. Priyanka Rasne. According to your experience, doctors, is there any effect or improvement in patient parameters after completion of 1 month of Ramadan in HbA1c, weight, UACR, metabolism, quality of life, and their insulin sensitivity? ये Dr. तो Hamid. रिसर्च पेपर है डॉक्टर हितेश पूरा. नहीं, just like if you have seen it. This is basically all about how the person has spent his Ramzan. Yes. Because fasting and feasting, both things are there. If the balance is tilting towards feasting, then definitely we are going to have quite pretty bad kind of parameters, which we often see because the patient does not know how to handle those kind of things. In OPD, mostly we see slight, you can say, derangement in the profiles because patient becomes very, you can say, lenient with their diet and lifestyle kind of thing. But few patients who are very disciplined and who understand the things, whom we have educated carefully, then definitely we get very good results that their weight 2 to 3 kg reduction is there. And apart from their HbA1c betterment, slight improvement in the lipid profile, all those things can be achieved. But only if we are following the guidelines in a scientific way. But if we are overindulging in kind of things, because जो रोजे की शुरुआत ही हम शाम में करते हैं पकौड़ों और शरबत से होती है. So if we are doing that, then definitely we don't expect any kind of betterment in that population. So it's all about how we have spent last 1 month. If you have investment is good, then the return is good. If the investment is bad, then the return is also going to be quite bad. Thank you, Dr. Anand. We have already discussed this aspect once more. Like, is it from Dr. Anusha Bhandarkar Dharawat? She's asking, is it advisable for type 1 diabetes on basal bolus regime to hold Ramadan fast? If yes, how can we guide them? I think Dr. Hamid ने वो Yeah, बताया. last week only I was in a type 1 diabetes meeting. The person who was organizing that meeting was she herself was a type 1 diabetic for last 38 years. So she told me that, Doctor, I'm fasting since at this moment she was using 780G, but prior to that, she told me when she was having this MDI, there also she kept fast. But keeping fast in type 1 diabetes, they require extremely high level of, you can say, awareness from the patient side as well as from the caregiver side. If the doctors and the patient, both of them, they are quite, you can say, well equipped, well trained, and they have, I mean, idea what is going wrong and what are the things which we need to take care of. That then only we should subject type 1 diabetes patient to fasting. So this was first patient. Another patient, see, in last Ramzan only. During the first week of Ramzan, I was called that the patient is admitted with DKA. You just have a look. I went there. What was the reason? The patient was fasting and we were not able to advise the patient properly. She might have not listened us or not asked us. So it's always a problem at both the side, from the doctor side as well as from the patient side. So at one end, we have patient who are keeping fast for last 38 years, and one end, the person was keeping fast just for 1 day and landing in DKA. So we need a very type 1 diabetes patient. They are very high risk, and we need a very good, dedicated, and motivated kind of person, both doctors as well as patients. Then only we should allow these children to, especially the children, to keep fast. So it's not a blanket no that a Yeah. type 1 patient है तो आप रोजा नहीं रख सकते हो. It's not a blanket no, but you need to be equally participative in terms of your monitoring to understand whether you'll be able to take it or not. So it's a team Yeah, effort there, over there, there. there are studies. There are almost 40 to 50% patients of type 1 diabetes. They fasted for more than 15 days in the Ramzan. Yes. So definitely, if it is well supervised,
a patient is receptive and we can teach all those things, then definitely we can allow them a supervised fast. Dr. Hitesh, Just I just want to add one point here. Like if you look at the previous IDF guidelines, like there was this risk stratification was different, Dr. Hamid. The type 1 was straight away in very high risk. Now that is not the case. Now we have a different risk stratification. In fact, as Dr. Rukia said, we should not say absolute no to people who want to fast and have type 1 diabetes. But the important thing is the education. If we are educating them, that is the most important thing. I know a lot of my patients who are having type 1 diabetes are adults and who have safely fasted for an entire month. So we should not say clearly that, no, you cannot fast. Do their risk stratification as per the calculator that we have and then educate them. Yeah, I think guidelines are there theoretically, but it should be tailor-made treatment based upon the patient's comorbidities or based upon the patient's present, biochemical status, you can say, plus patient awareness pre-Ramadan. And whatever we have discussed now, I think we can extrapolate this to people who fast. I mean, हिंदू भाई हैं हमारे जो उपवास रखते हैं, जैसा डॉक्टर बंसी साबू सर ने बताया था, ऑल राउंड द ईयर, लेकिन हफ्ते में 2 बार कोई फास्ट करते हैं या महीने में 5 दिन। तो अराउंड द ईयर, चाहे वो हिंदू भाई हो या अदर रिलीजन्स में हो, तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो आई थिंक इन फ्यूचर वी विल हैव अ CME on that also, so that we can we can give a general guidelines for people who are fasting या जो उपवास रखते हैं, जो आसानी से रख सके। So I think that will instill more confidence in the patients. Okay. तो इसमें एक सुन्नत भी मैं डॉक्टर हितेश सुनाना चाहूंगा। एक बहुत ही फेमस सुन्नत है। सुन्नत मीन्स द what our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to do regarding health. The sunnat is you have to fill 1/3 of your stomach with food, 1/3 with water, and 1/3 should be air. तो 1/3 से ज्यादा हमको पेट भरना ही नहीं है। तो अगर ये एक हदीस भी हम फॉलो कर लें तो आई थिंक उपवास हमारा या हमारा रोजा आराम से गुजर जाएगा। ओबेसिटी कम हो जाएगी। ओबेसिटी कम हो जाएगी। The problem is the fasting become feasting. Once we start eating, it becomes a feast, whether it's in Hindu, in Muslim, in Christian. The thing is that we all eat the fried foods, lot of carb intake increases, and we're just saying कि हम रोटी नहीं खा रहे हैं, but उसकी जगह आलू को बहुत बढ़ा लेते हैं। तो वो सब चीजें घट। एक लास्ट क्वेश्चन और लेना चाहेंगे हम। किसी ने पूछा ड्राई फ्रूट्स एंड रमजान, डॉक्टर ओवेस। See, I think this question has come from Kashmir only, most likely. Yeah, they are yeah. asking, can he take firni with sugar वो and तो dry fruits? Okay. शुगर तो हटा देंगे। So ड्राई see, फ्रूट्स see, this is a very common question that we get. ये बहुत आम सवाल है कि ये हर कोई पेशेंट हमें पूछता है कि क्या मैं फिरनी खा सकता हूँ, क्या मैं खजूर खा सकता हूँ। सो इसका जवाब ये है कि अगर आप इफ्तारी के टाइम चावल कम खाएं, बिकॉज सूजी अल्टीमेटली इज अ कार्ब, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। फिर आप शुगर उसमें डालें या ना डालें, बिकॉज द कंटेंट ऑफ जो सूजी है इट इज लाइक चावल। सो आप खा सकते हैं, बट आपको पोर्शन साइज ख्याल में रखना है। द क्वांटिटी ऑफ द फिरनी शुड बी स्मॉल, ठीक है। इट शुड नॉट बी अ बिग स्वीट डिश। और ख्याल रखना है कि उस टाइम जब आपको फिरनी खानी हो तो आप उस टाइम पे थोड़ा सा चावल कम खाइए, रोटियां कम खाइए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाइए, तो आप खा सकते हैं। Finally, we're coming to end of this webinar. Key take home away messages from each of you. Dr. Oves. In my opinion, we should always organize this type of a program a month earlier. और जो डॉक्टर बंसी साहब ने कहा कि we should organize these in our clinics की assessment करें। और to D Genius Group, my request is कि we should have our own data. हमारा डेटा बिल्कुल नहीं है रमजान एंड फास्टिंग में। Bangladesh has lot more data than us. Most of these Asian guidelines are coming from Bangladeshi data. So I think we are practicing diabetes and we have a lot of patients with type 1, with type 2 who are fasting. So we should have our own studies, our own guidelines, and which should be endorsed by our own religious imams and muftis. I think Bodies. Dr. Hamid would also agree to that. Dr. Hamid, one practical tip. Yeah. Since things have changed quite in past, as Dr. OS has already said, the IDF-DAR guideline, previously type 1 diabetes, they were taken as high risk group and there was a straight no for them.
As a caregivers, we should make Ramzan as a safe experience for our patients. For that, definitely we need to be aware of certain things, and we need to take care of all those things. And risk stratification is very important because so many things can be solved with a small piece of paper with just sparing 1 minute or 1.5 minute extra to each patient. Things can be done. And as Dr. Awais has said, then definitely if we are practicing something that should be evidence-based, and definitely we should have why the IDF should give the Indian foods are the most famous foods in the whole world. So why we should have the plates from the IDF, that we should have our own customized kind of plates from our own country for our own population, which suits them. So definitely this is one thing in long run. We should try to generate data, and we should practice that evidence. And apart from that, risk stratification and personalization of you can say treatment, and just to have 1 month before. So I think we all would agree on this point that we should do this at least 1 month prior to 1 that. month. We should have this kind of meeting. And apart from that, during the month of Saban, which is the preceding month of Ramzan, 1 or 2, you can say, trial fasting can be kept by the patient, and those feedbacks can be taken from them, and so that we can the patient can have safe fasting experience. Thank you, Dr. Kayar. Your key So take-home just to message. summarize, you assess the patient, you risk stratify the patient, and then you tailor-made the treatment for them. So there is no for fasting, but there are limitations to feasting. That's all. Thank you. So Dr. Yusuf. you can fast if you feast limitedly. Yeah. Dr. Yusuf, I'll last go words with from all you of before them. we end this रोजे को webinar. हम रोजा समझे, रोजे का मकसद समझे, तो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे, both spiritually and physically. Thank you, everyone. We had a wonderful discussion on this. I'm thankful for everyone to take their time out on this Sunday afternoon to make this important thing. Thank you, everyone. Thank you, D Thank Genius, you. and Thank thank you. you, Thank you, Dr. Dean. Hitesh, Dr. Rutul. Thank you, everyone. Assalamu Yes. alaikum. Thank you, Happy everyone. Ramzan Bye to bye. all of Happy you. Rosa, everyone. I know you Same must to be you. Same tired. to you. Everyone must be tired. Safe Ramadan ahead and Eid Mubarak in advance. Thank you very Mubarak. much. Thank you. So we'll just have a short corporate presentation. Yeah. Always support young and enthusiastic doctors who are interested in providing care in the diabetes management. For this, we bring you Diabetes Dynamic series for young diabetologists to improve their knowledge and practice. So this is in this series, this D-Genius webinar is there. So going through this USV, which is your reliable healthcare partner. Next slide, which is 62 years young in healthcare. One out of every 5th prescription in diabetes contains USV oral anti-diabetic brand. USV is a leader in cardiology by prescription. USV is leader in diabetes in orals by value and prescriptions. We are global leaders in metformin, and 1 out of every 6 tablets sold in the world of metformin is supplied by USV. And USV is a presence in 66 countries. Next. Our profound gratitude to each and every one of you, your family, being an integral part of our journey. Our aim to partner is to ensure better patient care so that India can be recognized as a metabolic care capital rather than a metabolic capital of the world. So next. And our roots are deeply ingrained in our Indian history. Our founder, Dr. Vitthal Balakrishna Gandhi, here in left side, and his successor, Arvind Vitthal Gandhi, and current leadership is Mrs. Leena Gandhi Tiwari and Mr. Prashant Tiwari is there. The backbone of our business is world-class manufacturing campus, active pharmaceutical ingredient plant. We are having an API plant of Cheploon and API Ambernath plant is there. And we are also having finished dosage formulation plants that is in Nerul, which is biological manufacturing facility, and Daman we are having finished dosage formulation, and Baddi we are also having finished dosage formulation plant. And we are having world-class manufacturing facility, dedicated plant of Glycomet GP at Vadodara itself, and dedicated plant of EcoSpring Navy Baddi at Himachal Pradesh. We are being a sustainable, responsible manufacturing unit.
untouched by hand, solar power usage 600 megawatts, zero liquid discharge, rainwater harvesting is there in these two plants. Paperless manufacturing laboratories are there. Green belts are there, that is 800 trees and 3,111 square meter area is there in this. And one of the sixth world requirement of metformin is supplied by USV, and quality of USV metformin. As FDA as per specification, NDMA should be placed greater than or equal to 0.032 ppm or 96 nanogram per day. Analysis result of most recent 44 batches of glycomet sustained list confirmed that glycomet SR NDMA level in glycomet SR 1000 milligram, glycomet SR 850 milligram, and glycomet SR 500 milligram was less than 0.01 ppm or per 30 nanogram per day. We are having leader brands in cardiology and diabetology, that is in Ecosprin AV, Ecosprin Gold, Ticaspan, Ricosprin, Glynas MF, Triglynas, Glycomet GP, Glycomet Trio, Glycomet GP Star, Insuquick, Liralin, Jalra range is there, Udapa range is there, and Roseday, Benzi, and Teslock range is there. Next. We believe that knowing is not enough, we must apply. Wishing is not enough, we must do. And if you want to see the change, be the change. So we are aware of the challenges in diabetes, that is disease awareness, screening and diagnosis, education and research, infrastructure and capacity building. Life without a purpose is meaningless. So we have a purpose which is beyond the business, to be a part of your and your patient's journey. We are having disease awareness screening that is more than 10 decades by that is TV, radio, FB Live, Insta, and print medium is there. We want to do something for today so that our future generation will thank us. Although we can't change the world, but we can definitely do our bit. Our partnership with HCP is more than 6 decades. And we are having screening more than 5 decades in hypertension, complication, diabetes, obesity, screening and diagnosis is happening. Encouraging research, that is 2000, that is we are having ESI AV Gandhi Award for Excellence in Endocrinology, AV Gandhi SCAI Award for Excellence in Cardiology, and AV Gandhi Award for Excellence in PhD Endocrinology and Evidence Genesis. India Diabetes Prevention Program was supported by USV also. And our continuous medical education collaboration with SCAI, the Association of Physicians of India, Indian Society of Hypertension, and Endocrine Society of India is also there. Also, our partnership, next slide. Our partnership is more than, with HCP is more than 6 decades. We are having Beta course, that is ECG learning for paramedics. Also Save a Life, an initiative to educate people on symptoms of heart attack, and training of more than 1 lakh people, including paramedics, on how to resuscitate in emergency situation like sudden cardiac arrest. And NDEP program that is entering into 14th year, which is created 22,000 diabetes educator in India. Also, next slide. We are having India Insulin Education Program, that is MyCare program, a type 1 diabetes education program, NIEP program, CIEP, and Insulinization for India program is there. Next slide. That is, we believe in sustainability, so we want to do something for today so that our future generation will thank us for, although we can't change the world, but we can definitely do our bit. We are using solar energy usage, and because of that, sir, we reduced by 4,000 carbon dioxide emission by reduced by 4,000 tons per year. And also we are having green insulin, that is recycled plastic waste created by our insulin pens and NG spun TR bottle to make our product plastic neutral, and also to create awareness on right disposal of sharp and insulin needles. Next. So thank you.